I think we are live now. Let's wait for a few people to join in and then we'll start this episode one of What Not to Do. Um, okay, people have started to join in. 7-8 लोग हैं अभी. Hi. Hi everyone, how's it going? कैसा चल रहा है सब कुछ? We'll just wait for our guest of tonight's show. Old School Bastard. आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं उनको. Oh, he's here. Let's wait for him to join and let's start with hi everyone. Hello, sir. Hi, Karunya. How are you? I am super good. How are you? Not too bad. Not too bad. What's going I love on? your Like, actually, मैंने just अभी ना नहाया. I was like, hair. नहीं नहा के बैठेंगे अच्छे से. Yeah, I've also applied a filter on Instagram, so that is also one major reason. So yeah, the bastard is here, guys, and Nitin Jai Singh. आप मैं आपको भैया बोल के एड्रेस करूंगा पर्सनली, बट फॉर द Okay. पीपल यू आर ओल्ड स्कूल बास्टर्ड, द ओजी बास्टर्ड. So first things first, this is my episode one. So I would like to start by telling people a little bit about ये podcast किस बारे में है, ये क्यों हो रहा है, and उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा. तो What Not to Do is basically a podcast, an Instagram only podcast, जो कि मैं old school bastard जैसे कुछ intellectual लोगों के साथ करूंगा बातें, and I'll get a chance to speak to such personalities जो कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर चुके हैं. And I'm 22, I'll get to learn a lot from people. और हमेशा क्या है ना कि I have felt कि लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा. तो आई डोंट वांट दिस थिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. आई वांट के ओल्ड स्कूल बास्टर टाइप के लोग आए यहाँ पे और उनके जो फेलियर्स हैं उस बारे में हम लोग बात करें उनसे, वो दुनिया को बता पाए कि उनने क्या फेलियर्स फील किए, लाइक फील नहीं किए, गलत वर्ड हो गया ना, क्या फेलियर्स थे उनकी लाइफ के जिनके कारण उनको थोड़ा टाइम लग गया जहां वो पहुंचे वहां पहुंचने में. तो शायद हम लोग, मैं आप सब लोग, वो गलतियां अवॉइड कर पाए कहीं ना कहीं. So this is what not to do is all about. My first question to you, um, old school bastard. I'm very confused. मैं आपको नाम से किस नाम से बुलाऊं? एक तो मैं आपके नाम से बहुत जेलस हूँ, पता है? क्योंकि नितिन जय सिंह, like यश राज मल्होत्रा, नितिन जय सिंह, मतलब ये लेगेसी नेम्स जो होते हैं ना, they are कि आप लोग पैदा ही हुए हो कि ये कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में. तो व्हाट्स अप विद द लेगेसी नेम, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे? अपनी एक कन्वर्सेशन हुई थी. हाँ जी. So what has happened is, so my great grandfather, he was in the British Army, right? And his name was Jai Singh, Okay. right? So there was this one British officer who was there, and we're talking about Pakistan. He was posted in Pakpattan, Pakistan. So back in the day, this British officer asks him that, what does your name mean? And he's like, Jai means all hail, like Jai Singh, that means all hail the Singh, or you can say that all hail the lion, because lion is very brave. So that's how he was, and he was a very good shooter. Like, I remember there was a queen from England, and this is what my grandfather told me, that there was this queen from England who had, come to Pakpattan, Pakistan, and she had a one-on-one shooting competition with my great grandfather, and he defeated her, and she herself was a shooter. And then she was like, "Oh, Jai Singh, you're gonna be a legacy in your family." That's what she said, and that's how it started. So every generation since then has had a Jai Singh. Right from my father's generation to my grandfather's generation to my great grandfather's generation and the one before him, and now I'm carrying the name. So it's basically the name is passed on. So since I have got the name Jai Singh, it is my choice. Who will I find worthy enough to lift the hammer of the name? So right. this is how it goes. I'll probably give it to my daughter if I have one. So I think that's a brilliant idea. There are none of the females in my family have had this legacy name before. So I was like, why not? 100%. It will be very cool for her. And like, are you planning to get married anytime soon?
I was just having this conversation with my mother, and I found a loophole in the conversation because my relatives were on the call, and my sister, who was on the call, is also watching the live. They're like, um, शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों नहीं कर रहे? And I was like, मैं तो तैयार हूँ, आप लोग मेरी शादी नहीं होने देते. And then I found this loophole where, I don't take the blame, I put the blame on them, and then they have nothing to say. So that's how it's going on. But yeah, marriage will be on the cards, obviously, but not right now. I've got a few things to, sort out, and everybody has their own goals, accomplishments, achievements. जो उसके मतलब रात को सोते हो तो सोने से पहले जो सबसे इंटीमेट ख्याल जो होता है आपका, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक अच्छी नींद नहीं आती है. तो पहले वो पूरा करना है, फिर उसके बाद then we will proceed towards marriage. Right. And I have this question जो मुझे दिमाग में बहुत पहले से था, ये मैंने आपसे कॉल पे नहीं पूछा था कि why did you say yes to this podcast? Like, this is the first time I'm doing a podcast, and I am not very good at speaking. Like, public speaking एक चीज होती है कि like brands के लिए कुछ बोल देना, एक story तो 15 सेकंड की, but एक conversation build करना है something जो कि मैं पहली बार कर रहा हूँ लाइफ में. And I don't have a portfolio जो कि दिखा रहा है कि इस बंदे ने पहले कुछ ऐसा किया है, किसी से बातचीत की है ज्यादा. तो why did you say yes? Like, वो fear नहीं आया कि यार ये मेरी reputation ना खराब करवा दे, या कुछ भी ऐसा thought? Why did you say yes? मेरा जो रेपुटेशन वाला जो वर्ड तुमने यूज किया ना, मेरा फेसबुक पे याद है जब फेसबुक इनिशियली स्टार्ट हुआ था, एंड देन यू हैड टू पुट योर बायोज इन फेसबुक अबाउट मी. सो माय बायो वाज नेवर चेंज्ड ऑन फेसबुक. डे 1 से मेरा बायो वही था, लिव वेयर यू फियर टू लिव एंड डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन एंड बिल्ड इट अगेन. सो रेपुटेशन के बारे में मैं रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचता. एंड द रीजन आई सेड यस is because, first of all, the name of the podcast, What Not to Do, it has a very intimate significance in my life, because I've done a few things in my life which were not, suiting the norm of the society in a way. Yeah. And I chose them because I wanted to do them. But there were certain things which I did not want to do. एंड इन लाइफ के तौर तरीके में अगर मैंने कोई चीज सीखी है, तजुर्बा जो अगर मेरे को आया है, तो वो ये आया है कि जिंदगी में इस बात का पता होना बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या नहीं करना है. आप क्या करना चाहते हैं वो आप फिगर आउट कर लेंगे. आप क्या नहीं करना जो फिगर आउट करना है ना, जब अगर आप उसको फिगर आउट करने बैठे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा. तो वो आपका वक्त जाया हो जाएगा. और दिस इज अ मिस्टेक दैट आई हैड मेड व्हाइल ग्रोइंग अप, that I did not, मेरा कोई वो एम नहीं था, गोल मतलब एम नहीं था लाइफ में. एंड आई डिड सो मेनी थिंग्स. वो क्या, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो वाली बात हो गई थी. एंड देन इट वाज वेरी लेट इन माय लाइफ आई रियलाइज दैट यार ये जो मैं कर रहा हूँ आज की डेट में, ये तो करना ही नहीं है. एंड आई थिंक दैट थॉट वाज वेरी इंटीमेट टू मी, एंड आई थिंक most of the people who are watching also relate with that thought. So I think the importance of that one statement is very underrated. It's very undermined, the entire statement, that what not to do. What to do तो हर कोई पूछता है. How should I gain Instagram followers? What mic do you use? 100%. Exactly. What mic do you use? Where do you get your music from? ये सारी चीजें. भैया लड़की कैसे पटा है? कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं. कुछ भी आते हैं. Everything. So the entire process is not defined by what mic I use. The entire process is defined by what I have not done in that. I could have said anything with the Instagram reach that I have. I could have been an influencer. I could have sold merchandise. I could have sold the wrong stuff, gained money, but I chose not to do that because that is something that I did not want to do. And that defines what you don't want to do, defines your person. And this is something that I believe, that, what you don't want to do defines your personality in a more deeper manner than what you do. जो उसूल होते हैं जिंदगी के, तो वो I think what you don't want to do is basically the उसूल of life. ये नहीं करना है. तो आपने बैठे बिठाए मार्केटिंग कर दिया. मतलब ये क्लिप मैं यूज करने वाला हूँ हर एक जगह अपने पॉडकास्ट के आगे. अगर कभी यूट्यूब पे वेंचर आउट किया ना कि व्हाट नॉट टू डू क्या होता है, ये समझ लो सब लोग. नहीं, बट व्हाट नॉट टू डू उसूल है जिंदगी का.
या एक चीज मैंने नोटिस की जो कि आपने डिस्कस भी की थी हम लोगों ने कॉल पे, कि आप ब्रांड प्रमोशंस नहीं करते हो। आपने जस्ट अभी भी कहा कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते थे विद अ मैसिव रीच, लाइक 300,000 फॉलोअर्स, लाइक 3 लाख पीपल, लाइक 3 लाख लोग, मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दैट। 3 लाख लोग हैं आपके पास एक ऑडियंस में, एंड स्टिल यू चोज नॉट टू डू ब्रांड प्रमोशंस। आप Yeah. इन्फ्लुएंसर गिरी नहीं कर रहे हो, सो कॉल्ड जो होती हैं। हाँ. एंड यू ऑल्सो ट्रैवल, तो आप ट्रैवल ब्लॉगर भी बन सकते थे, but you chose not to advertise. Why is that so? Because I started all of this not knowing why I'm pursuing this. First of all, कि मेरे को पता ही नहीं था मैं ये क्यों कर रहा हूँ. Because that comes with experience. That comes along with the process. क्योंकि आप जब किसी चीज को, मेरा गोल कभी था ही नहीं पैसे का. Okay. So अगर That's पैसे का गोल होता, this is going to be next question, but हाँ, please continue. अगर पैसे का गोल होता तो मैं शुरू से ही इन्फ्लुएंसर वाली स्ट्रैटेजी पे चलता कि हाँ Yeah. ठीक है, अभी 50,000 हो गए हैं, सो माय प्राइस इज गोइंग टू बी 5,000 पर पोस्ट. Right. मिनिमम. Right. ठीक है, आप यार मेरे को लूपहोल honestly क्लिक कर रहे हो. हम लोग अभी हैं छोटे लेवल पे, प्लीज. नहीं नहीं, ठीक है, हाँ, कंटिन्यू. but it's good. See, Yeah, so diplomatic. if It's good. It's see, really no, good. no, the whole point is if you want to be a businessman, so day one say it's clear that I want to be a businessman and I'm going to do a business with this. So if I'm doing brand 100%. promotions after saying that I want to be a businessman, there is nothing wrong with it. I don't want to, Yeah. write something which is very close to my heart और वो सारी चीजें. Yeah. तो वो मिसलीड नहीं करना चाहता हूं मैं, बिकॉज ये बहुत पर्सनल सी चीज है और झूठ नहीं बोल सकता मैं झूठ Yeah. नहीं बोल सकता हूं. तो मतलब मैं वो करना ही नहीं चाहता. मेरा शुरू से यही रोल. मैं आपको बताता हूं कि ब्रांड कोलैबोरेशन ना करने का रीजन यही है कि मैंने एक ब्रांड कोलैबोरेशन की थी बहुत साल पहले, व्हेन आई हैड somewhere around 8,000 followers, and I'll tell you why I did that. So Okay. I went for a trip and I used to have a watch which was really close to me. Hmm. I lost that watch and I was not earning like monetary benefits. मेरे को उस जॉब से इतने नहीं थे and I wanted a watch. I Yeah. wanted to buy a watch. So I was like एक काम Yeah. करता हूँ. तो मेरे 2-4 और फ्रेंड्स थे जिनके 2-3 हजार फॉलोअर्स थे और वो एक पर्टिकुलर वॉच का ब्रांड था, नाम नहीं लेंगे, एक Yeah, पर्टिकुलर yeah, वॉच का definitely. ब्रांड था. हाँ, तो एक पर्टिकुलर वॉच का ब्रांड जो इन्फ्लुएंसर Yeah, मार्केटिंग पे वो बहुत जो, रिलाई करता था. हाँ हाँ, हाँ वही वाला. आज तो तक. Yeah. तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू इस ब्रांड को अप्रोच कर एंड दे विल गिव यू अ वॉच, ऑल यू हैव टू डू इज पोस्ट 3 पिक्चर्स. आई वाज लाइक ओके. Yeah. तो मैंने उस ब्रांड को अप्रोच किया, मेरे पास घड़ी आ गई. ठीक है, मेरे पास घड़ी आ गई. Yeah. मैंने 3 पिक्चर्स पोस्ट की और वो 3 पिक्चर्स पोस्ट करने के बाद मुझे गिल्ट ट्रिप आ रही है कि मैं यहाँ पे ट्रैवल कर, मैं यहाँ पे लोगों को बता रहा हूँ दिस इज हाउ यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, दिस इज हाउ इट्स नॉट इजी, इट इज और फिर मैं साइड बाय साइड ये चीजें कर रहा हूँ तो कि ये ब्रांडिंग टू वॉच भी ले लेना प्लीज, मतलब हाँ, ये सब करने के लिए आपको सही वक्त पे चलना पड़ेगा, इसलिए ये वॉच लो, इससे टाइम देखते रहना. यस, यू ऐसे क्लिक ही होते हैं पिक्चर्स, आजकल के. you click pictures with the camera, क्या? but it's very important to know what time you should click pictures. So Oh, that is how you you should start taking brand promotions. Yeah. So Okay. I think that's how it that's when I learned a very important lesson in my life कि हाँ ये सब नहीं करना है because it is very fake. और जब चीजें fake हो जाती है ना, तो the kind of person that I am, तो मेरे को वो बड़ा लाइफ में burden फील होने लगा because मेरा EQ बहुत हाई है. तो वो चीजें मेरे को, आई थिंक आई एम डूइंग इट मोर फॉर माई सेल्फ देन अदर्स, नॉट डूइंग ब्रांड कोलैबोरेशंस इन एवरी. तो वो नहीं करना है बिकॉज दिस इज अ आर्ट पेज एंड पीपल लव इट बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिसिटी. एंड एक बार ही वही बात होती है कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग देन देयर इज वो कुएं की कोई वो नहीं है या वो लालच पड़ता है. तो दैट्स व्हाई हाँ स्टार्ट ही नहीं करना. You just said that your EQ is very high. Like for the audience, Yeah. can you tell कि emotional quotient क्या होता है and how does it play a role in your personal as well as professional life? Like कितना ज़्यादा heavy So, role होता है EQ emotional- का, क्योंकि yeah. So, as a part of growing up, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो हम लोग को सिर्फ IQ के बारे में पता था और टेस्ट भी लेते थे हम लोग, IQ के टेस्ट लेते थे. It was, I think in 2011 when I had my first struggle with depression.
और दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट Okay. यार मैं कैसे डिप्रेस हो गया, मैं कैसे डिप्रेस हो गया, मतलब मैं क्या सच में, मतलब मुझे पता ही नहीं था ओवर थिंकिंग क्या होती है, एंग्जाइटी क्या होती Yeah. है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इस बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मुझे भी नहीं पता था। Definitely. एंड सरप्राइजिंगली माई फादर वॉज इन टू डिप्रेशन बिफोर आई वेंट इन टू डिप्रेशन। तो मेरे को तब भी नहीं पता था कि Okay. डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि घर में कोई बात नहीं करता था। Right. तो वो सारी चीजें मेरे को पता चली, और वहां पे फिर आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम somebody mentioned EQ to me was my therapist way back, Okay. way You back. took therapy in which year? I Like started roughly? my therapy, like my first therapy that I did was 2011 November. Okay. Okay. Like So 9, 10. Yeah. that is when I did my first therapy session. I did only one. I did only one, and Yeah. because it didn't go as per plan. और Yeah. बट उसमें उन्होंने पहली बार EQ मेंशन किया, और वो बोलते हैं EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, Yeah. कि आप जब डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, आप जो चीजें बेसिकली जो IQ होता है इज अबाउट यू नो हाउ intellectually, how intelligently can you make decisions, how intelligently can you make choices in life. EQ is Right. how emotionally, and my Yeah. EQ was greater than my IQ. So everything that I Right. was doing in my life was driven by my emotions, and I was feeling Right. everything. हर चीज मुझे महसूस होती थी। इट इज अ कर्स एंड अ बून एट द सेम टाइम, कि मैं वो चीजें देख Mm. सकता हूँ जो एक नॉर्मल बंदा नहीं देखता। छोटी सी बात है, कोई खाना डिलीवर करने आ रहा है, लोग कहेंगे कि चलो खाना आ गया, मैं ये सोचता हूँ कि ये खाना क्यों डिलीवर करता होगा, इसकी क्या नीड होगी। Mm. सो वो एक Right. डिफरेंस होता है। एंड यहाँ से जब आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं, यहीं से आपकी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, जब आप चीजों के बारे में ऐसे सोचने लग जाते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ढूंढना ट्राई कर देते हैं आप हर चीज में, कि Right. यार ये ये इंसान ऐसा कर रहा है, इसकी कोई मजबूरी होगी, वो मजबूरी क्या है, मतलब एक इंसान ऐसा उस वक्त में क्या फील कर रहा होगा। तो वो सारी चीजें, दैट इज Right. हाउ EQ वाज डिफाइंड बाय माय ओन पर्सनालिटी फॉर मी, इन अ वे जहाँ पे मैं उसको एक ट्यून कर सकता। और फिर वहां पे धीरे धीरे एज अ पार्ट ऑफ जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो आपको Yeah. कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस समझ में आने लग जाता है कि सिर्फ EQ से आपका काम नहीं चल सकता है, एंड स्पेशली फॉर पीपल हु हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि सिर्फ EQ पे आप अगर रिलाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती हैं। तो वो एक रैशनैलिटी मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है, एंड आई थिंक दैट वाज द स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ, bringing my Yeah. IQ and EQ at par with each other. So I think Yeah. that is how, like, EQ and IQ are very important. अगर सिर्फ IQ है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो दोनों 100%. चीजें होनी चाहिए। Right. True. Okay, so tell me about your life before becoming OSP, like old school bastard से पहले आपकी लाइफ क्या थी, right? नितिन जयसिंह का थोड़ी सी स्टोरी बताइए मुझे कि how were you नितिन, as a child, आपका, हाँ as a child, so I'll start from the very beginning. हाँ बहुत पहले से My स्टार्ट father करते हैं, wanted a girl. My father wanted a girl in the family, ओके and I happened. And my father was so, like, he was so confident that बच्चा जो होगा वो लड़की ही होगा, that he had already हाँ. bought clothes for the baby girl. ठीक है? So did you wear those And clothes then, well, unfortunately, बचपन में? yes, and there are some pictures too. Which हाँ. there is a picture Oh, of me in a pink frock, and oh, oh. with the with like two ponytails and everything. So हाँ. that is how it started. And my father always used to talk to me as if I was a girl. And Okay. I think वो, और वो जिस तरीके से ध्यान भी रखते थे, कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे वो सारी चीजें, तो वहां Yeah. से आई थिंक यहाँ से पर्सनालिटी एक धीरे 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 डेवलप होना चालू हुई। फिर देन Yeah. बिकॉज फादर इज स्टिल सर्विंग इन द आर्मी, सो उसमें क्या होता है कि यू गेट ट्रांसफर्ड एवरी नाउ एंड देन। So this entire process of shifting to a new place every now and then, making new friends every now and then, was our normal. Like ये हमारी नॉर्मल जिंदगी है, this is how it's going to be. तो वो एक धीरे धीरे आदत हो गई, दोस्तों का बनना, दोस्तों का छूटना। फिर वो एक तरीके से शुरू शुरू में नहीं पता चलता था, बट जब आप 6th और 7th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो 6th और 7th स्टैंडर्ड में आने के बाद जब आपके दोस्त छूट के जाते हैं, दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग थोड़ा थोड़ा। Yeah. तो वो फिर आप उसको वो पेन को प्रोसेस करना चालू करते हैं।
फिर आपके दोबारा Right. आप और बड़े हो रहे हैं, आपके और फ्रेंड्स टूट रहे हैं, तो वो फिर आप उस पेन को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर आप की गर्लफ्रेंड बन रही है और फिर आपका फिर ट्रांसफर हो जाता है और वो फिर आप उस पेन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे चालू हुआ। एंड बीइंग इन द डिफेंस बैकग्राउंड, तो वो एक सबकॉन्शियसली हम लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता था, और वो एक बड़ा Yeah. अनइंटेंशनल सा प्रोसेस होता था, क्योंकि आर्मी रेजिमेंट्स की अपनी टीम्स होती थी। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आरआर है, या फिर 136 बटालियन है, जो भी है, उनकी अपनी हॉकी Okay. टीम्स हैं या फुटबॉल टीम्स हैं। तो वो प्रैक्टिस करते Okay. थे, तो हमें साथ में बोलते थे कि चलो तुम इनके साथ खेल लो, एंड दैट्स हाउ Okay. अनइंटेंशनली हमारा स्पोर्ट्स में इंक्लिनेशन हो जाता था, एंड वी वर गुड इन Yeah. स्पोर्ट्स। सो आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एंड देन वहाँ पे रोहतक में भी एक, जब आई वाज इन रोहतक फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 2 years, तो छोटू राम पार्क में हम लोग वो पूरा एक छोटू राम वो पार्क है जिसमें सारे स्पोर्ट्स खेलते थे उस टाइम पे, अभी पता नहीं खेलते हैं कि नहीं। पर उस टाइम पे खेला करते थे, तो एक साइड में हैंडबॉल चल रहा होता था, एक साइड में हॉकी चल रही होती थी, एक साइड में फुटबॉल, एक जगह पे क्रिकेट खेल रहे होते थे, और कोचिंग वगैरह वहाँ पे होती थी। तो वहां से स्पोर्ट्स की तरफ काफी इंटरेस्ट रहा, ट्यूशन बंक कर करके स्पोर्ट्स खेलने जाते थे हम लोग, एंड फिर घर में आके मार Okay. पड़ती थी। और कहते कि तुमने ट्यूशन बंक कर दिया। मैंने बोला नंबर तो मेरे अच्छे ही आए हैं ना, तो क्या हो गया, बट दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड। आपने ट्यूशन बंक कर दिया, दैट इज रॉन्ग। तो वो वो धीरे धीरे पेरेंट्स के फिर सामने नहीं है मैंने। कभी भी वो नहीं चला। आई टॉट माई डिस्ट्रिक्ट इन 10th स्टैंडर्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, एंड आई रिमेम्बर या मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था, एंड मैंने बोला पापा को कि यार देखो, टॉप कर दिया ना मैंने। तो बोलते हैं टॉप कर दिया वो सब ठीक, एंड दिस इज व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, सेम डे, विद इन 1 hour ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स, ही इज ओके। लाइक टॉप वॉप कर दिया वो सब ठीक है, आज के बाद बंक किया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, 11th आ गई है। टिपिकल इंडियन फादर। टिपिकल टिपिकल। इंडियन फादर। तो और ऊपर वो से सारी आर्मी चीजें, बैकग्राउंड से भी, तो उनकी तो आर्मी आवाज भी बैकग्राउंड, वेरी रुतबे स्ट्रिक्ट, वाली होगी कि। वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी या। स्ट्रिक्ट। ऐसे नहीं है कि मतलब सुबह 5 बजे उठना, वो वाला स्ट्रिक्ट नहीं, बट हाँ। अगर सर्टेन रूल्स हैं हाउस होल्ड में, सर्टेन रूल्स हैं विच आर लाइक, हाँ ठीक है, रेड जोन का ये रूल है, अगर ये तोड़ दिया तो भैया फिर आप गए। तो वो उस तरीके के कुछ रूल्स हैं। हाँ। तो वो रूल्स कभी तोड़ने, और ये एक वो होती थी कि मतलब आपको कॉन्वर्जेशन करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता होता था कि घर या। में हाउस होल्ड में ये रूल्स हैं, ये नहीं तोड़ने, राइट। लाइक दिस इज द बिग डील, ये बिग शिट है, इसको इसको नहीं तोड़ना। तो वो सारी चीजें होती थी। राइट। स्पोर्ट्स में हम लोग वहां पे हो गए, पढ़ाई में हम लोग अलग अलग स्कूलिंग में होते, तो वो अडेप्ट कर करके हमारा एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती थी, पढ़ाई में भी ठीक होते थे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते थे, वो सारी चीजें। बट उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता था ऑनेस्टली, बिकॉज एंड में तो आपको इंजीनियर ही बनना है ना। तो हम लोग एंड में इंजीनियर बन गए। बिकॉज ट्वेल्थ मैंने कैसे भी पास करी, और मेरे को कहते हैं मॉम डैड कि क्या करना है आगे, एंड आई वाज लाइक मुझे क्रिकेटर बनना है। लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर? ओके। सो एंड दैट टाइम आई वाज अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा, सो आई हाँ वाज हाँ हाँ। लाइक आई रिमेम्बर। all these all these big Bollywood actresses, they end up marrying cricketers, so I want to be a cricketer. And I was such a goofball. I used to Google her age, and I was like कि age gap कितना है, क्या वो मुझसे शादी करेगी? I was very serious about Yeah, I did the same for Alia Bhatt. Last to last year. I was like, हाँ मेरे 12,000 फॉलोअर्स तो हो गए, I might try. तो या हाँ तो फिर। वही वही सारी चीजें हुई। तो मॉम डैड ने बोला कि नहीं, क्रिकेटर में तो कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम रहने दो। एंड आई वाज गुड इन क्रिकेट, ऐसा भी नहीं था कि मैं गंदा खेलता था, मैं अच्छा खेलता था। एंड पर ठीक है, मॉम डैड ने डिसाइड कर लिया था। मॉम डैड ने भी क्या डिसाइड कर लिया था, मेरे बड़े भाइयों ने डिसाइड कर लिया था, बिकॉज बोथ माय एल्डर ब्रदर्स, कजन एल्डर ब्रदर्स, दे वर इंजीनियर्स। तो ओके। मेरे से तो ये भी नहीं पूछा गया था कि भाई कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो उन्होंने बोला हाँ इंजीनियर तो तू बनेगा, एंड दे कॉल्ड अप माय एल्डर ब्रदर एंड दे आस्क्ड हिम भाई कौन सी स्ट्रीम में इसको डालें। जब मैं थक हार के जब मैं थक हार के ये हो गया था कि हाँ अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ही है, तो आई हैड मेड अप माय माइंड दैट आई विल गो इनटू मैकेनिकल। ठीक है, या। बिकॉज आई लाइक टू, आई हैड अ नीश फॉर ब्रेकिंग थिंग्स। तो आई वाज लाइक मैं मैकेनिकल ओके। ज्वाइन करूंगा, एंड बिफोर आई कुड रियलाइज आई वाज ऑलरेडी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। And या। computer science engineering, there is one thing in life that I cannot do. Like I could not. Now I can't say that ओके। because I've done it. There was या। one thing for almost 28 years of my life that I could not do. That was coding.
और मैंने 4 ओके साल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, मुझे नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है, बिकॉज 12th में जो मेरी कोडिंग की नॉलेज थी वो मेरी ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरी कोडिंग की नॉलेज उतनी थी। आई वही डोंट होता इवन, है, वही होता है। तो हैश इंक्लूड iostream.h तक तो जो नॉलेज थी वो शुरू से सिर्फ उतनी नॉलेज रही मेरी 28 साल या तक। जो गूगल से मिल जाती है जिसलिए गूगल से इंजीनियरिंग मिल की जाती जरूरत नहीं होती है, बट इंजीनियरिंग कॉलेज में वही पढ़ाते हैं। सो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसी इंजीनियर्स की लाइफ होती है वही नॉर्मल सी मेरी लाइफ थी, दोस्तों के साथ तफरी मारता था। बट आई थिंक ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज इज व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू राइटिंग। ओके। वहां पे पहली बारी टू इम्प्रेस समवन आई हैड या रिटन समथिंग, आज लाइक कि मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी एंड इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, और जिसमें कैरेक्टर का एक जो प्राइम कैरेक्टर था लड़की का, वो मैंने जिसके ऊपर मुझे क्रश होता था उसका मैंने वो नाम देके वो एक स्टोरी लिखी थी, एंड आई स्टिल गॉट दैट स्टोरी इन माय दिल्ली कपबोर्ड, वो जो पेपर पे मैंने लिखी थी। ओ तो वो वहां पे लिखी थी आई थिंक, और वो लिख के ना मुझे अच्छा लगा था, वो मुझे लिख के अच्छा लगा, तो मैं आज भी उसको पढ़ता हूँ तो इट सीम्स वेरी इनोसेंट, इट सीम्स वेरी यू नो, जैसा एक वो होता है ना कि क्यूट सा इनोसेंट सा एफर्ट किया था, तो वो सारी चीजें आई ऑनेस्ट थिंक दैट एफर्ट। इज व्हेन ऑनेस्ट एफर्ट। और फिर दैट्स व्हेन, क्योंकि वो लिख के मजा आया, तो आई थिंक वहां से जो राइटिंग का सफर था वो चालू हुआ। और हालांकि एक बीच में बहुत लंबा पॉज था जहाँ पे ब्रेक या लिया मैंने, लिखना छोड़ दिया था, कोई मतलब वो सीन था ही नहीं, मतलब तब रियलाइज नहीं हुआ था मुझे, हाँ। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट आई थिंक दैट इज व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट। तो वहां से फिर इंजीनियरिंग हुई, इंजीनियरिंग के बाद जॉब हुई, एंड यहाँ पे फिर योर पॉडकास्ट comes into the या picture of what not to do in life. I ओके, सो remember. आपने, या प्लीज। नहीं नहीं पूछो क्यों। नहीं, मैं पूछ रहा था, आपने बीच में बताया कि कॉलेज में एक किसी स्पेशल समवन से आप इंट्रोड्यूस हुए जिसके लिए आपने कुछ पहली बार लिखा। तो ये स्पेशल समवन कहाँ से बिलोंग करते थे, इनकी स्टोरी क्या है, इसमें थोड़ा सा जाता है। Well, that special someone never happened. ओ और ओ अच्छा, एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार भी नहीं वहीं था, से मतलब स्ट्रांग हो गई आपकी, मतलब वहीं से स्ट्रांग हो गई राइटिंग, जब तो मिलता नहीं है ना कोई वो दुख वाले। she, she she ended up dating my best friend, so I think that is when I got hurt 2 years later. ओहो So, ओके ओके ओके। but by that time I या was with somebody else. तो वो मजाक मजाक में सारी चीजें हो रही थी, but it was good. तो I think my first love was like जो कॉलेज में मैं जैसे कहूंगा, like जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो रही थी, वो स्कूल में मैं मिला था उनसे 11th और 12th में, और फिर वहां से धीरे धीरे कॉलेज में मैं आया, एंड देन वो होता है ना कि आप एक एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, और आप जानते हैं कि कॉलेज में उससे खूबसूरत कोई लड़की नहीं है, तो और हम लड़के हैं, तो हमें लगता था कि हमने बहुत कोई तोप काम कर दिया है, तो और हमारा मैं फर्ज बनता है कि हम जाके उनसे बातचीत करें। हाँ। तो ऐसे मेरा सिलसिला शुरू हुआ था, और दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, एंड आई स्टिल गॉट वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज। कोई वो बैड ब्रेकअप वाला सीन नहीं है, इट्स हम्म। लाइक आई स्टिल चेरिश दोस डेज, बट धीरे 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 आगे जब जिंदगी और सीरियस होती गई, जिंदगी में चीजें बदलती गई, तो जो प्यार का मतलब होता है, जो मोहब्बत का मतलब होता है, वो भी बदलता गया वक्त के साथ। तो आज की डेट में पीछे मुड़ के देखें तो मैं उसको कहूंगा कि हाँ यार ठीक है, चलो दैट वाज नॉट लव, दैट वाज ओके समथिंग, अ वेरी innocent emotional attachment, because I think the definition of love changed as life changed, as life progressed. या And I think that is a very natural process, happens to everybody of us, like everybody. तो वहां या से वो मतलब कॉलेज में तो इतना कोई मतलब इंटरेस्टिंग लव स्टोरी नहीं थी, so ओके it was it was only after coming to Sydney and everything that is when like I heard ki bhai, as I told you, I remember on the call I told you that I was not a huge believer of destiny or डेस्टिनी, लॉ ऑफ manifestation, अट्रैक्शन, law of मैनिफेस्टेशन, attraction. या मैं आई I वाज was अबाउट not टू a कम टू दैट टॉपिक। या
I was not a huge believer of it, but things changed so substantially कि आपको क्या है कि आप किस तरीके से एक इंसान जो सात समंदर पार जिससे आप स्कूल में कभी मिले थे थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में, वो सारी चीजें वो दोबारा आपसे यहाँ पे सिडनी में कहीं टकरा जाता है और आमना सामना हो Yeah. जाता है और फिर वो पता चलता है कि भाई हाँ you like the things that happen, it feels as if it's a conspiracy of the universe trying to bring you Yeah. together. और that's when I started believing in law of attraction. और आज की डेट में इतना strong belief है, इतना strong belief है Yeah. कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा लगता है ना कि यार ये डिफिकल्ट है, तो मैं उसको अपनी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे छोड़ देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि यार कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है ना, मैनिफेस्ट कर लूंगा. समझ लेंगे. So, समझ आएगा. तो वो आई But थिंक yeah, can you tell us a little deeper about जो हमारी कॉल पे बात हुई थी, the 7-Eleven incident, how you met 7-11. that special someone all over again, like after years? So Because I think audience को बहुत just interrupting you once, जितने लोग comments कर रहे हैं, मैं बहुत सारे थोड़ा skim through कर रहा था अभी, तो जितने लोग बोल रहे हैं कि comments भी पढ़ो नहीं तो लोग चले जाएंगे, तो we have a special segment at the end of this podcast, जहाँ पे old school bastard से आप लोग खुद बात कर सकते हैं. We'll take 2 or 3 people live with us. ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बट हाँ, stick with us and you can get a chance to have a conversation directly. जो भी आपके questions हैं, बिकॉज ऐसे शायद कन्वर्सेशन का फ्लो टूट जाएगा अगर मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बोल बोल के पढ़ूंगा. तो या सर, प्लीज कंटिन्यू. So I remember I was with a friend of mine और हम लोग ना ऐसे, and this friend of mine is a typical पंजाबी, ठीक है. और या हम लोग 7-11 जा रहे हैं सिडनी में और थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, एंड आई नीडेड एन एनर्जी ड्रिंक. मैंने बोला कि यार ठीक है, एनर्जी ड्रिंक उठाते हैं, तेल वेल भरवाते हैं, चलते हैं फिर. तो फिर 7-11 में हम लोग घुसे. 7-11 में हम लोग घुसे और मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक ली और मैं ऐसे गेट से निकल रहा था, सामने की तरफ चल के गेट से निकल रहा था, और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला ओए जय. तो मैं ऐसे पीछे को मुड़ा और मैं ऐसे पीछे जा रहा था, एंड देन आई लाइक बम्प्ड अ टाइनी गर्ल ऑन माय वे आउट, क्योंकि मेरी कमर हो गई थी उनकी तरफ. एंड देन आई टर्न्ड अराउंड एंड आई लुक्ड एट हर एंड द फेस लुक्ड वेरी फेमिलियर. द फेस लुक्ड वेरी फेमिलियर. एंड देन उस टाइम पे तो मेरे अंदर इतनी वो नहीं हुई कि भाई गट्स की मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं रिकलेक्ट कर ही नहीं पाया. बट द फेस लुक्ड वेरी फेमिलियर. आई वाज लाइक मैं रिकलेक्ट कर ही नहीं पाया कि ये कौन है क्या है, बट मुझे ये लग रहा था कि हाँ दिस इज वेरी फेमिलियर. एंड देन वन डे घर गया, मैं घर आया तो मेरे को कहीं ना ऐसे झलक झलक से मेरे को लग रहा है कि शायद वो हो सकती है जो स्कूल में थी, शायद वो हो सकती है. पर मैंने बोला नहीं यार, क्या चांसेस है, व्हाट आर द या चांसेस, कोई चांस नहीं है. तो फिर क्या हुआ, एक दिन हमारी कोविड हो चुका था तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी सारी चीजें, एंड देन जूम कॉल चल रही थी पूरी उसकी. तो जूम कॉल पे ना पूरी क्लास बैठी हुई है, एंड आई एम ऑल्सो सिटिंग देयर विद माई माइक एंड कैमरा टर्न्ड ऑफ स्टैंडर्ड, एंड आई एम डूइंग समथिंग एल्स. क्लास चल रही है और टीचर बोल रहे हैं, टीचर सेज कि हाँ नाउ एवरीबॉडी विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि क्या कौन है, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजें. एंड देन मैंने बोला यार कैमरा और माइक ऑन करके बात करनी पड़ेगी सबसे, शिट. एंड देन वहां पे फिर देन all the I could see the class in there, and then I read a name there, and this name was of the same girl from school time, and she's sitting there with a mic and camera turned off. And now I can remember very distinctly कि हाँ 7-11 में maybe मैं जिससे टकराया था ये वही है, because मेरे ये दिमाग वही में है. ये थॉट आया था. and now I'm just waiting कि उसका टर्न आएगा, माइक और कैमरा ऑन होगा. या एंड ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, जैसे अभी बैठा हुआ, ऐसे ही क्लास चल रही थी और लाइक सेम पोज था, सेम पोज, लिटरली सेम टेबल, सेम चेयर, एवरीथिंग, यही लैपटॉप, हर चीज. तो आई वाज सिटिंग देयर, शी टर्न्ड ऑन हर माइक, और वो होता है ना कि लैग आता है वीडियो और हाँ हाँ हाँ, ऑडियो में, तो वो बफर वीडियो और होता है. ऑडियो का लैग था. और वो अचानक से वीडियो खुली, एंड आई रिमेम्बर माई रिएक्शन, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन माई चेयर, एंड आई वाज लाइक like how on earth is this possible, how on earth is this possible. And then that's when फिर क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स के वो ग्रुप्स बने, वो मेरे ग्रुप में आ गई, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग. और फिर वो वन थिंग लेड टू अनदर, और उन्होंने भी मुझे पहचान लिया, सारी चीजें मैंने भी उनको पहचान लिया.
and that's how it all started. Okay. Are you still dating? No. Okay. Yeah. Okay. Um, Uh, it yeah. it got over because of obviously for reasons that which you people don't have control over. Basically, it's the Hmm. reasons were bigger than people, and Yeah. it is very important to have that rationality in a relationship. It was not because कि हाँ भाई ठीक है, जो modern day relationships में जो फड्डे होते हैं कि हाँ ठीक है यार somebody cheated on someone या फिर oh it's not you it's me, वो वाला कुछ नहीं था. Yeah. It was something very inevitable. She had to leave Yeah. Australia and she wanted to move on in her life because वो कहती थी मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकती. So that's how. And I was like, all right, you can't force someone to be with you, and that has been my Yeah, that's okay. role since day one. So I think that, but Okay. beautiful memories. इतना कुछ, I think that is when the entire inspiration of, I think she was the one who, you know, ऐसे ही बात हुई थी, वो शेर व शायरी की बड़ी शौकीन थी. तो Yeah. मैं पहले कुछ भी मतलब जो नॉर्मल शेर व शायरी जो होती थी वो पढ़ के सुना देता था. फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने मैंने बड़ा कमाल का काम किया था. मैंने कुछ लिखा हुआ था और बिकॉज वो होता है ना कि इनिशियल एज आई टोल्ड यू ऑन द कॉल आल्सो दैट आई वाज अ वेरी वेरी शाय पर्सन. आई स्टिल एम टू सम Hmm. एक्सटेंट. और अपना काम बाहर दिखाने के लिए मैं बहुत हिचकिचाता था. तो मुझे याद है मैंने वो लिखी हुई थी तब एक के अरसों बाद मिला हूँ रकीब से तो जल उठा है महबूब मेरा, बड़ी सादगी से करता है इज़हार मोहब्बत जब भी करता है महबूब मेरा. When I saw the Sydney Opera House and the Harbour Bridge for the Wow. first time, so I was having a conversation with myself कि रकीब भी मैं ही था, Hmm. महबूब भी मैं. वो मैंने लिखा हुआ था और मैंने बोला कि यार एक पता है मेरी फेवरेट कौन सी है. शी वाज लाइक व्हिच वन. आई वाज लाइक यही वाली है, अरसों बाद मिला हूँ रकीब से. बोलती किसने लिखी है? मैंने बोला फैज अहमद फैज साहब ने. तो बोलती हाँ हाँ बहुत अच्छी लगी है. तो मैंने बोला है ना. तो फिर मैं क्या होता था कई बार जो भी शायरिया मैं लिखता था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं डालता नहीं था, तो जो भी शायरिया मैं हाँ. लिखता था उसके ऊपर कभी गालिब लिख दिया, कभी Yeah. अहमद फराज साहब लिख दिया, कभी फैज अहमद वो फैज फेमस साहब. हो जाएंगे ना, मतलब नहीं तो लोग जज करेंगे शायद कि अरे फेमस इसने फेमस लिखी वाली है. बात नहीं थी. आई जस्ट डिडंट वांट हर टू क्रिटिसाइज ओके इट. ओके ओके ओके. कि तो आई क्रिटिसाइज होगा भी थॉट तो गुलजार साहब के ऊपर हुआ है. इट्स फाइन. तो कि गुलजार मैं साहब बोला ने कि अच्छी नहीं यार लिखी ठीक इस है, बार. तुम थोड़ा वही है ना कि अगर आपने उसके पीछे अहमद फराज साहब लिख दिया तो लोग उसको थोड़ा सीरियसली लेंगे. तो सीरियसली मैं, लेंगे. हाँ, और अगर मैं बोलूँ कि यार हाँ मैंने कुछ लिखा है तो वो पहले ही हंस देंगी, बोलते तुम भी लिखते हो क्या. तो वो सारी चीजें फिर इवेंचुअली हाँ. सूनर लाइक और लेटर बताना था ही. तो मैंने एक दिन बताया हाँ. उनको कि जो वो रकीब तुमको सुनाई थी वो मैंने लिखी हुई है. बोलती है तुम लिखते हो? मैंने बोला हाँ. और फिर मैंने उनको अपनी डायरी दिखाई थी एक, और उस डायरी में शेर थे काफी सारे मैंने लिखे हुए हैं, काफी सारी आजाद नज़में थी जो मैं लिखता रहता था. या. उसी में उनको एक बहुत जो पसंद आई थी वो ये थी कि 1 साल से कोई आवाज नहीं आई, कैसी हो तुम फिरदौस. तो ओ. वो वाह. वो जब उनको मैंने सुनाई थी, शी इज लाइक तुम लिखा करो, तुम दिस इज नॉट लाइक, ये बिगिनर का काम नहीं लगता है कि जब आप शुरू करते हो आप लिखना, ये लिखने का काम तुम्हारा ऐसा नहीं लगता है कि तुमने अभी शुरुआत की, तुम लिखते आ रहे हो शायद, तो तुम लिखते रहो. एंड आई थिंक शी वाज द वन हु पुश्ड मी टू कीप राइटिंग, या. कीप राइटिंग. बोलती वो कभी कभी टेक्स्ट मैसेजेस पे गुड मॉर्निंग की जगह ये पूछ लेना कि कुछ लिखा नया, और फिर कोई पूछ ले कि कुछ हम्म. लिखा नया, तो आप ये अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो फिर तो आप आप लिखने लगते हो. सोचते हैं, तो आप लिखने लगते हो कि यार मैं कुछ या. नया लिख के भेजता हूँ. तो वो राइट. ऐसे ऐसे सारी चीजें, अम, उनका एक टेक्स्ट मैसेज था. और मुझे ये एक जो पोम थी वो बड़ी प्यारी लगती है. मेरे को नहीं पता ये किसने लिखी है क्योंकि मैंने इस राइटर को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, नहीं मिला. पर ये मेरी फेवरेट थी. तो उनका उनका शी वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड वहां से उनको आया था कि मैसेज की कुछ लिखा. एंड दैट्स व्हेन आई रोट माय फेवरेट हाँ. पोएम बैक टू हर. आई वाज लाइक अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है, मुझे तुम याद करते हो, तुम्हें मैं याद आती हूँ, दिसंबर की सुनहरी धूप में टहलने जाते हो क्या, किसी खामोश रास्ते से मेरी आवाज आती है क्या, अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है. तो वो इस तरीके से आई ओहो. थिंक स्वीट.
being with her was very synonymous to writing for me. कि मतलब अगर उनके साथ हूँ तो मैं उनको कोई ना कोई जो कुछ लिखा है नया मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि हाँ मैंने ये लिखा. तो वो आई थिंक दैट समहाउ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ राइटिंग. और नरेटिंग का तो कभी वो सवाल आया ही नहीं था. वो तो बहुत मतलब एक ऐसी चीज हो गई जो करता था पहले, फिर छोड़ दी थी, फिर इसको दोबारा उठाया है. तो वो इस तरीके से आई थिंक अगर मेरी लाइफ में आई वुड से ये रिलेशनशिप नहीं होता तो शायद मैं लिखता नहीं दोबारा. एंड दिस ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट नॉट टू डू अगेन वाज कि शायरी सिर्फ टूटे दिल से नहीं आती है. वो तो बहुत क्लीशे चीज है. यू शुड हैव इमोशंस बेसिकली. अब वो टूटे हुए दिल के इमोशंस हैं, वो कोई भी इमोशंस है, आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं. तो व्हेन पीपल आस्क मी कि आपका दिल टूटा है क्या, ऑब्वियसली हर किसी का दिल टूटा हुआ है. ऐसा नहीं है कि किसी का दिल नहीं टूटा है. पर दिल तोड़ने के लिए एक शख्स की जरूरत नहीं होती है. हमेशा हालात भी ऐसे हो सकते हैं जो आपका दिल तोड़ रहे हैं. तो वो मेरा ऑब्वियसली आई स्टार्टेड राइटिंग इन लव. मैं तो ये खुला कहता हूँ कि आई स्टार्टेड राइटिंग इन लव. इट वाज नॉट out of heartbreak. I've written about heartbreak because I cannot rightfully deny the rightful emotions that I rightfully feel. rightfully right. तो वो सारी चीजें मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता. तो I think it's very important to feel first of all, and again EQ comes into the picture यहाँ पे. This is where EQ is very important. And I also remember you telling me on the call कि आपके जब वो स्पेशल समन जाने वाले थे वापस पाकिस्तान, उस टाइम पे उन्होंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा था कि इफ यू रियली वांट टू मेक मी हैप्पी देन स्टार्ट पोस्टिंग दिस आउट. ये दुनिया तक ले जाओ ये अपना आर्ट. तो दैट इज समथिंग वेरी लाइक ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव जिसको आप बोलते हो शायद. और मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि उन्होंने मुझसे कहा था कि स्टार्ट पोस्टिंग दिस आउट, टेल इट टू द वर्ल्ड, शो इट टू द वर्ल्ड, कम आउट ऑफ योर बबल, डोंट बी सो शाय. ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी. पर at that point of time I was going through something else. I was not thinking about writing at all because the person that I love is leaving. And then I was like, yaar, obviously you want to stop them, right? Obviously you want to stop them. And I had the emotion that I had a mixture of sadness, helplessness, and I was slightly angry too. So उस एंगर में मैंने एक बात बोली थी. मैंने बोला these bloody governments can stop me from visiting the country that you belong to, but they cannot fucking stop my voice. So now I will voice it with that. So वो मैंने एंगर में बोला था. And I think जब मैंने पोस्ट करना चालू किया वो एंगर मेरे अंदर से कहीं ना कहीं गायब हो गया था. And I was like कि मेरी आवाज पाकिस्तान पहुंचनी चाहिए. So that is how the entire process for me started. And but वो सारी चीजें बाद में बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई. It was not about, it became very open for me. It was not just about me expressing my emotions या फिर मुझे अपनी आवाज कहीं लेके जानी है. It was not that. मेरा मकसद चेंज हो गया in the entire process. I started doing it because I started loving it. तो वो सारी चीजें फिर वो धीरे धीरे सारा वो प्रोसेस चेंज हुआ. So that is another story in itself. This is a part of the process. जब आप किसी चीज को करने लग जाते हैं ना तो फिर आपको चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं, आपका मकसद बदलते हुए दिखाई देता है. And that is when you start to realize what I actually want to do. Right. So you were also doing this very comforting job in a very big IT firm. Like उस टाइम पे आज भी है, but उस टाइम पे तो वो पीक पे थी वो IT कंपनी. तो वहां से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन थी आपके, राइट? नेटवर्किंग इंजीनियर की पोजीशन थी. अमेजिंग सैलरी, अमेजिंग पोजीशन इन द कंपनी, अमेजिंग कंपनी ओवरऑल. वहां से छोड़ने के डिसीजन से लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई एंड क्या हुआ, लाइक आगे क्या हुआ जब उस कंपनी से आपने छोड़ा? वो कंफर्ट जोन से निकले कैसे? This is, or
आज आज ही मैंने अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया, एंड शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और इसी Yeah. चीज के बारे में मैंने मैसेज किया था कि आई थिंक आई एम स्लाइटली क्रेजी। मैंने मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि आई एम स्लाइटली क्रेजी, कि वो होते हैं कि लाइफ में मैं उनको कर रहा था एक्सप्लेन कि भाई हार्ड डिसीजंस, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बेसिकली क्विट माई जॉब, आई क्विट माई गवर्नमेंट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई एम लाइक कि हाँ Oh. अब मुझे कुछ नया करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कौन सी जॉब कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग दैट आई विल कीप टू माई सेल्फ फॉर नाउ। बट when it comes out probably in another 4-5 months कि मैंने क्या किया है इन 4-5 महीने में, then probably we'll have another podcast together, because 100%. it is if I pull this off, this is going to be something very inspiring. And Yeah. so I was having a chat with her and I was telling her कि भाई the problem here is that I think I'm slightly crazy, कि I am not scared before taking the hard decision in life. I get scared after I take the decision, which is normal. कि हाँ अब ये हार्ड डिसीजन ले लिया है, नाउ आई एम इन अ सूप, मेरे को नहीं पता यहाँ से कैसे निकलूं, नाउ आई गेट स्कैर्ड, एंड दिस इज अ पैटर्न दैट आई हैव, दैट आई गेट स्कैर्ड, आई क्राई एंड आई गो इनटू अ लूप जिसमें मैं पूरा ऐसे डाउनफॉल में जाता हूँ, एंड देन समथिंग ऑलवेज क्लिक्स इन माई हेड कि नहीं ये तो करना है, एंड देन आई बाउंस, एंड देन स्लोली दैट वो इंसैनिटी वाला और वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाती है कि नहीं ये तो करना है और अब मैं करके रहूंगा। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द एंटायर डिफरेंस लाइज, कि अगर आप जिंदगी में कोई हार्ड डिसीजन ले ही नहीं रहे Yeah. तो आप उस हार्ड डिसीजन लेने से डर ही क्यों रहे? सही बात है. इट डजंट मेक सेंस टू मी कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं जॉब छोड़ने से डरता हूँ, सो इट डजंट मेक सेंस टू मी. True. ठीक है, Right. सो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ, दैट मेक सेंस टू मी, बिकॉज वहां पे क्या होता है ना, Yeah. the last line of the message that I sent to her was like, I think it is very important to push yourself to the limit where your survival instinct triggers, कि हाँ ठीक है अब नहीं तो फिर तो भैया गए, and Right. that is when your You have true character comes out. right. अब कुछ है ही नहीं ना, मतलब इससे ऊपर जाना है. वो जाकिर खान बोलते हैं ना कि इससे नीचे क्या जाऊंगा, इससे ऊपर ही जाना. हाँ, तो आप उस इससे सिचुएशन पे ऊपर, अगर हो तो हाँ हाँ एब्सोल्युटली, कि भाई यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब यहाँ से अगर कुछ नहीं किया तो चीजें बहुत गलत हो जाएंगी. अभी चीजें गलत नहीं है, ऐसा हमारा दिमाग में ना मेंटालिटी है कि चीजें बहुत गलत हो गई, पर चीजें गलत नहीं है, चीजें ठीक हैं अभी भी, आप दिमाग में उन्हें गलत मत करो. मैं कहता हूँ ना कि राइट. मैं रोता हूँ फिर एक स्पाइरल में जाता हूँ, तो मेरा दिमाग या मेरे को कहता है कि चीजें बहुत गलत हो गई, और फिर वहां से मेरे को रियलाइज होता है कि यहाँ से मैं, अरे ऐसा हुआ है लाइफ में कि जब मेरे को लगा है कि बहुत चीजें गलत हो गई हैं, मैं वहां से उठ के फिर मैंने चीजें ठीक करी हैं, तो फिर जब वो चीजें ठीक हो जाती हैं तो मैं फिर देन आई लुक बैक एंड आई वाज लाइक यार वो चीजें गलत नहीं थी, इट वाज मी हु वाज सेइंग टू माय सेल्फ कि ये चीजें गलत हैं, वो गलत थी नहीं, इट वाज अ पार्ट राइट. ऑफ द प्रोसेस. तो वो एक कोट है जो मैंने लिखा हुआ है कि भाई ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द स्ट्रगल, एंड ट्रू. that will just help you sail through anything in life, कि आप कुछ राइट. भी कर लेंगे. सो आई थिंक, और मेरे अंदर ना एक पर्सनल चीज भी है इसके अंदर, the struggling phase of the next 4-5 months that I'm in. तो कहीं ना कहीं मैं 2015 I quit my job, started traveling India, मोटरसाइकिल पे घूमा, फोटोग्राफी की सारी चीजें, एंड देन आई क्रिएटेड माय ओन नीश इन मोटरसाइकिलिंग और वो सारी चीजें अलग की. तो वो कहीं ना या कहीं जब वो छोड़ के मैंने गवर्नमेंट जॉब में, मैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब तक भी पहुंचने में अपनी एक स्ट्रगल थी, या और या गवर्नमेंट विल जॉब में टॉक जब अबाउट आप दैट. गवर्नमेंट जॉब में आप पहुंच जाते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, व्हेन यू लुक बैक टू योर ओल्ड वीडियोस कि हाँ यार मैं मोटरसाइकिल में ऐसे चल रहा था, वो सारी चीजें, ऐसे पहाड़ों में जाया करता था, रात को कैंप करता था, टूटा हुआ था एंकल तुम्हारा और तुम स्पीति की रोड ट्रिप पे निकल गए हैं, तो वो ओ सारी चीजें मैं देखता हूँ तो, और मैं सोचता था कि यार ये मे बी दिस वाज ऑल फ्लूक, ये एक तुक्का लग गया राइट. मेरा, क्योंकि एक बार राइट. ही करके छोड़ दिया ना कि तुक्का लग गया दिस, राइट. and I will bloody hell pull this off. And if and या when I, not if का तो question नहीं है, when I pull this off,
if When नहीं I pull when this off, yeah हाँ, when I pull this off, तो फिर then it's not a fluke because twice cannot be a fluke. 100% It's वो not मेहनत it's है. not luck, it's the man. तो वो Yeah. that is my personal, you know, conflict with myself कि मेरे को ये करना है to prove to myself, and I think that is more important. Rather than proving it to the world, I have to prove it to myself कि I can do it. तो वो I'm really excited about that. Yeah, I'm not talking about that thing. We'll have a podcast again once you achieve what Definitely. you want to achieve. Yeah. You traveled 27 fucking states. 27 fucking 27. states in 2.5 years. Yeah. मतलब इतना तो मैं सोच नहीं पाऊंगा कभी. मैं घर गोचू हूँ थोड़ा सा, तो मैं नहीं सोच पाऊंगा था. बट 27 states in 2.5 years is something very big. मतलब जो Yeah. ट्रैवलर्स भी हैं वो भी नहीं सोच पाएंगे आई थिंक इतना तो. Two questions here. Why didn't you start travel vlogging? मतलब आप इतना ट्रैवल कर रहे थे तो. एंड इसमें से सोलो ट्रैवल कितना था, लोगों के साथ कितना ट्रैवल था, एंड हाउ डिड यू रीडिस्कवर एज यू सेड प्रीवियसली, आपने Yeah. यहाँ पे इस फेज में, ट्रैवलिंग के फेज में रीडिस्कवर किया था पोइट्री को, शायरी को, और Yeah. Yeah. Yes. ओल्ड स्कूल बास्टेड को. तो व्हाट वाज दैट फेज लाइक? So initially, so how it all started was I was sitting with my friends and ऐसे फोन में सैलरी का मैसेज आता था, तो वो सैलरी का मैसेज आया एंड ऐसे फोन रखा हुआ था, वो डिस्प्ले ऑन होती है, उसके ऊपर मेरे को टेक्स्ट मैसेज दिखा कि हाँ तुम्हारी सैलरी आ गई है. एंड I did not even get a fucking smile on my face. Like that was the importance of that salary in my life. So I put the phone upside down. ऐसे. And I think that was the defining moment when I was like कि हाँ यार इसमें कोई खुशी नहीं है, मेरे को ये करना ही नहीं है. तो one thing led to another, job छोड़ दी, सारी चीजें. And obviously एक हफ्ता मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ. मेरे को actually realize तो तभी हो गया था, मैंने बोला ना कि I take the hard decision and then I cry. तो जैसे ही मैं वो निकला था वहां से, ऑफिस से, एंड आई जॉब छोड़ के, मतलब एब्सकॉन्ड लिटरली, जब मैं वहां से निकला था तभी मेरे को रियलाइज हो गया था कि ओ शिट व्हाट हैव आई डन, एंड नाउ आई कांट गो बैक बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ईगो नाउ. How did you leave the job, like the manager incident? Are you comfortable sharing that? I can नहीं. give you Okay, let's skip the topic. Let's get no back no to. we can definitely talk about it. So Okay, we'll so change my the uncle, positions of people. we'll change the positions and everything, but there is Yeah. मतलब वो जो कंपनी थी उसका नाम नहीं लेंगे, but the company that I was like associated with majorly, तो उसका भी नाम लूँ, उसका नाम ले सकता हूँ because वो मेरे अंकल की कंपनी. Okay. So Okay. there is it's still there, Tricent वो है Tricent Technologies है शायद, I think something like that. Okay. So I was related with that company. और कुछ एक ये जो MNC है इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हमारे पास होते थे, और उसको हम लोग ऑन साइट कभी कभी मैनेज करते थे. तो हम ऑन साइट गए हुए ना, देयर वाज दिस न्यू जॉइनी हु हैड जस्ट कम इन, एंड देन बिकॉज कोडिंग में तो मन नहीं था, एंड आई वाज वेरी मच इनटू नेटवर्किंग, बिकॉज नेटवर्किंग में आप यू कैन क्रिएट स्टफ थ्रू नेटवर्क्स. तो वो सारी चीजें मैं क्रिएट करता, उसमें मजा आता था. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी था, सारी चीजें थी. आई हैड क्रैक्ड द एग्जाम्स आल्सो. ऐसा भी नहीं था कि मतलब हल्का फुल्का सीट था, अच्छा मतलब अच्छी खासी, मतलब उसमें एफर्ट डाला था. पढ़ सकते थे, चॉइस से नहीं पढ़ा था, पर वो फिर वही था ना कि ऑप्शन तो है नहीं अब. तो अच्छा खासा एफर्ट डाला था उसमें भी. फिर सारी चीजें धीरे धीरे चलती थी, एंड देयर वाज दिस न्यू जॉइनिंग, एंड मेरे मैनेजर की जो, मतलब ये जो एमएनसी का मैनेजर था, इसकी और मेरी तो कभी मतलब बनती ही नहीं थी, मतलब शुरू से नहीं बनती थी. बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट आउट इन द ओपन वेयर की यू नो एक दूसरे को ब्लेटेंटली कुछ बोल दिया, नहीं, इट वाज अ कोल्ड वॉर काइंड ऑफ थिंग. तो फिर एक नया ज्वाइनी आया, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने बहुत बोल्ड में, ईमेल में भी बोल्ड में हाईलाइट करके लिखा था कि शुड नॉट बी गिवन नाइट शिफ्ट्स अलोन, एंड ही वाज गिवन नाइट शिफ्ट्स अलोन. द वोडाफोन टावर्स वेंट डाउन इन द नाइट. They kept calling me. I will not lie. I did saw the calls. Like I did see the calls. I did see the calls. I did not answer because it was not my time to answer. I called him back at like 7:30 a.m. in the morning, and he's like, "Where were you? This and that, this and that." I was like, "Please don't talk to me like that." I told you in the email that he is not ready yet, so it's on you, not on me. तो मैं ऑफिस गया उसके बाद.
ऑफिस में गया तो दैट न्यू जॉइनी अपेरेंटली हैड क्राइड इन द मॉर्निंग आल्सो कि ये मैंने क्या कर दिया दिस एंड ही लेफ्ट फॉर होम। और फिर वो मैनेजर मेरे रूम में आया एंड देन वी हैड अ आर्ग्यूमेंट एंड देन आर्ग्यूमेंट में मैंने ऑब्वियसली एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोली, बहुत लॉजिकल मैंने बात बोली कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये नहीं करना है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। वो वाला चीज होता है ना कि वो हायरार्किकल टेबल में देखते ब्लेम हैं गेम। और हाँ वही वाला कि भाई there are two birds sitting. मैनेजर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। When the bird on the top looks down, he sees shit, and when the bird on the bottom looks up, he sees assholes. So वो वाला या एक practical चीज चल रही थी, and then I was like, you know what? I'm not your fucking slave. So I was like, I pointed the middle finger to him, and then I was like, fuck off. And then bag उठाया, and I was like, if you want me to leave, I'll fucking leave right now. तो bag उठा के मैं निकल गया और मैं बस निकला ही था ऑफिस से। I was like, what have you done? Yeah, What have you done? relatable. And I remember मैं घर गया और घर जाने के बाद डैड बोलते हैं यार ऑफिस से जल्दी आ गया तू। मैं बोला हाँ वो एक हफ्ते की छुट्टी ले ली मैंने। Okay. तो माय डैड इज लाइक कि भाई छुट्टी किस बात पे ले ली? मैं बोला कुछ नहीं यार ऐसा तो मतलब वो सीन नहीं है, मतलब आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक। तो बोला ठीक है चल हाँ रेस्ट कर, कहीं चलना है तो बता। और पापा की वो गवर्नमेंट ना छुट्टी देती है, एलटीसी जो होती है, ओके एंटाइटल्ड लीव्स होती है। तो डैड बोलते हैं यार मेरी अच्छा एलटीसी पेंडिंग है, दोनों बाप बेटा चलते हैं कहीं घूमने। मैं बोला हाँ होल्ड ऑन काम डाउन, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि 7 दिन की छुट्टी लेके आया, चलेंगे घूमने चलेंगे। एंड माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड, उन्हें क्या पता कि बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सो आई एम सिटिंग ऑन माय बेड, अरे एक हफ्ता गुजर चुका है एंड माय फादर कम्स लाइक मंडे आ गया नेक्स्ट मंडे एंड माय फादर इज लाइक ऑफिस नहीं आना तेरे को? मैं बोला नहीं मैंने वो एक हाँ हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया। बोलता है हाँ यार दीदी आज क्यों के क्या चल रहा है। नो ही इज लाइक यार इससे अच्छा एलटीसी पे घूमने चले जाते हैं यार, घूमने में 14 दिन में तो मस्त छुट्टी होके आती है। मैं बोला ठीक है। हाँ एंड देन आई वाज लाइक नहीं मैं जा रहा हूँ यार, मैं शिमला घूमने जा रहा हूँ। तो आई पिक्ड अप माय मोटरसाइकिल, आई हाँ वेंट टू शिमला बिकॉज आई वाज ओके टायर्ड ऑफ गिविंग आंसर टू माय फादर। तो मैं शिमला घूमने हाँ गया एंड शिमला से मैं शिमला पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे जल्दी पहुंच गया हूँ, तो आई शुड गो टू नारकंडा। हाँ तो मैं नारकंडा गया एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। नारकंडा गया, मैं हाटू पीक पे बैठा एंड उस टाइम पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम होता था जय सिंह और मेरे बहुत ओके आई थिंक क्यूट क्यूट से 200 या 300 फॉलोअर्स होते थे जिसमें काफी सारे हाँ ऑफिस के बंदे थे। सो आई रिमेम्बर सनसेट हुआ एंड दिस वाज द डिफाइनिंग मोमेंट। जब वो सनसेट में स्काई का कलर चेंज हुआ ना, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि भाई ये सनसेट मैंने 3 साल से नहीं देखा। ओ I've not seen sunset, I've not seen these colors and I was like what have I missed in my life? तो मैंने आई रिमेम्बर मैंने सोनी W580i, मेरा फोन हुआ करता था सोनी एरिक्सन का, मैंने उससे फोटो खींची, ठीक है, अपने पास रखी। फिर नए नए इंस्टाग्राम पे आए थे, एक सैमसंग का फोन था तो वो या ब्लूटूथ से ट्रांसफर किया करते थे, सारी चीजें बहुत लोचे हुआ करते थे। तो वो मैंने वो फोटो अपलोड करी एंड आई रिमेम्बर इंस्टाग्राम के पेज पे मेरी फोटोज होती थी या जिसपे 4 या 5 लाइक्स आते थे और सनसेट की फोटो पे मतलब आई रिमेम्बर आई थिंक इट वाज 8 लाइक्स और 9 लाइक्स which were more ओके than what my pictures were. And those 8 and 9 likes, most of them were from people who never liked my pictures. And they were from my office. So I was like, probably they are also, they have just realized that they have been missing the sunset. और वो उनको या इसलिए hit हुआ है because I was in the office ना and now या I'm on Hatu Peak and they are still in office. तो I think वो उनको hit कर। तो that is when I felt something very different और वहीं से वो सारी चीजें धीरे 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 चालू हुई और एक पिक्चर क्लिक हुई, एक जगह आप गए, फिर आप दूसरी जगह गए। इन द मीनवाइल डैड को भी बताया कि जॉब छोड़ दी है। देन ही आस्क्ड मी कैसे छोड़ी, क्या हो गया। आई वाज लाइक मैनेजर से नहीं बनती थी। तो माय डैड्स लाइक व्हाट हैपेंड। आई वाज लाइक मैंने बोला यार जाटो को गाली दे रहा था। ओह I'll have to interrupt you for a second. ये ना इंस्टाग्राम का कुछ मुझे पता नहीं था कि वो 27 seconds remaining बता रहा है इस लाइव के लिए। हाँ, तो can we rejoin the live? या Can we live? 100% ये बंद 100% या 100%। just give me a second क्योंकि वो फिर या श्योर। इंटरप्ट कर देगा। या give me a second option। ये इंस्टाग्राम का कुछ ग्लिच है कि 1 घंटे में बंद हो जाता है। I don't know about। Hi, we are back। हाय
या रियली सॉरी फॉर आपका मैंने बात काट नहीं दी नहीं नहीं एकदम से, नहीं, बट नाउ इट्स वर्किंग मच बेटर. या या यू वर टेलिंग मी। हाँ. एक हफ्ते तो का 2 हफ्ता हो गया इंटर्न से। हाँ, तो माय डैड वाज लाइक कि भाई क्यों तुमने जॉब छोड़ दी, ये सारी चीजें. एंड आई थिंक इफ यू वांट टू रियली यू नो कैसे कहूँ कि मैं, इफ यू वांट योर डैड टू, लाइक माय डैड टू स्टॉप आस्किंग यू क्वेश्चंस, यू हैव टू जस्ट से कि हाँ ठीक है यार, वो जाटों के अगेंस्ट बोल रहा था, ऐसे कैसे बोल दिया. तो आई वाज लाइक, उसने जाटों के खिलाफ बोला, बोलते सही किया तूने. तो आई थिंक ओके। डैड ने उसके बाद फिर ऑब्वियसली वी हैड अ सीरियस डिस्कशन अबाउट इट कि भाई हाँ लाइफ में आगे क्या करना है, दिस एंड दैट. आई थिंक आई वाज रियली लकी बिकॉज माय या फादर, as I said, had mental health issues, right? Initially depression से गुजर चुके थे. So I think he somewhere understood कि मैं किस ट्रैक पे जा रहा था और मैं किस ट्रैक पे निकल रहा हूँ और उसका रीजन क्या हो सकता है बैकग्राउंड में. When I said that I'm not happy, I think he felt it on a much deeper level. तो वो डैड ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग. तो मैं कहीं पे भी जाता था, आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट दैट आई यूज्ड टू स्टे इन टच विद माय डैड. मॉम्स को मैं फिर भी नहीं बताता था कि मैं यहाँ पे गया हूँ या फिर मैं वहाँ गया हूँ, बट डैड को हमेशा बताता था कि व्हाट इज माय करंट लोकेशन. वो हमेशा उनको मालूम रहेगा, मैं हमेशा उनको बताता था. तो आई थिंक दैट्स व्हेन द एंटायर दिस इज हाउ ट्रैवलिंग स्टार्टेड फॉर मी, without या even realizing कि I am in love with traveling. I am in love with the, you know, the kick that I get out of it, in simpler राइट। words. तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था, मेरे को रियलाइज बहुत लेट हुआ जब ट्रैवल करते करते बीच में 15-20 दिन के लिए जब मैं घर रुका और मेरे को घर पे रहना मुश्किल हो गया. मैंने बोला कि यार नहीं, यहाँ से निकलना है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मेरे को अब इसकी आदत हो गई है. तो या फिर तो मैं फिर घूमता रहा, बहुत सारे लोगों से मिला, मोस्टली सोलो ट्रैवल करता था. हाँ रास्ते में कोई मिल गया तो अगर उसको, कई बार ऐसा हुआ है कि एक इंसान, जैसे मान लो मैं ऋषिकेश से जा रहा हूँ, रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ, कोई रास्ते में मिल गया, बोलता है यार मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, तो वो बाइक पे बैठ जाता, पीछे मैं उसको छोड़ देता था. कोई यहाँ से वहां ऐसे ओके। जाता था, तो रास्ते में मिलता रहता था. बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं राजस्थान में, मेरे को काफी सारे लोग मिले. आई रिमेम्बर विंटर्स में मैं आ रहा था राजस्थान में, एंड गड़बड़ कहाँ हुई कि जब मैं बैंगलोर से निकला, बैंगलोर का वेदर थोड़ा सा वैसा ही रहता है, मॉडरेट सा. It's हाँ it's हाँ हमेशा the साल भर। colder side, but it stays stable all throughout. राइट। तो मैं वहां से एक सिंपल, मेरे दिमाग से completely skip हो गई बात कि दिल्ली में विंटर्स है. तो मैं राइड करते करते बैंगलोर से निकला एंड आई एम वेयरिंग जस्ट सिंपल पुलोवर जो होती है नॉर्मल, वही पहन के मैं बाइक चलाऊं. मेरे पास उस टाइम राइडिंग गियर भी नहीं होता था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर अ राइडिंग गियर, जस्ट डिस्क्लेमर डाल. तो फिर मैं निकला राजस्थान में, एंड राजस्थान में पहुंचते पहुंचते रात होनी स्टार्ट हो गई. गुजरात के बॉर्डर से राजस्थान में एंटर रहते, मतलब नाउ आई एम इन राजस्थान एट राइट समवेयर 2 AM इन द नाइट एंड दिस इज नियर पाली. ओके। तो पाली के पास मेरा बदन कांप रहा है और मैं ढाबे के पास रुका हूँ. मेरा बाइक का इंजन गर्म था ना, तो मैं हाँ उसके पास बैठ गया कि वहां से थोड़ी हीट मिल जाए, क्योंकि वो जो ढाबा है वो सो चुका है बंदा. और मैं ओ बैठा हूँ, पता नहीं वो ढाबे वाले बंदे की आंख खुली होगी या समथिंग. ही गॉट अप, ही सॉ मी एंड ही वाज लाइक क्या हो गया, इधर क्यों बैठे हैं. मैं बोला भाई ठंड लग रही है बहुत ज्यादा. तो लाइक रुक रुक रुक, तो वो उसने चाय भी बनाई मेरे लिए. उसने ओ चाय बनाई. फिर एक सरदार जी आ गए कहीं से, तो डस्टर में आ रहे थे सरदार जी. तो उन्होंने मेरी बाइक पे देखा कि टायर लगा हुआ है, सामान लोडेड है, तो वो कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं. मैं बोला दिल्ली जा रहा हूँ. बोलता चल चल आ जा. तो मैंने हाँ बोला आ जा. बोलता चल चल बाइक गाड़ी के पीछे पीछे आ जा. बोलता साथ में हाँ चलते हैं, अकेले चला चला के बोर हो हाँ जाएगा. मैंने बोला ठीक है भाई हाँ हाँ चलो. तो वो आगे हाँ डस्टर चल रही है, पीछे मैं चल रहा हूँ. और क्या हुआ, थोड़ी सी मतलब 5-10 किलोमीटर के आगे लेफ्ट ले रहा था, तो हम्म, पेट्रोल स्टेशन आया, तो उन्होंने लेफ्ट लिया, तो मैंने भी ले लिया लेफ्ट उनके साथ में. एंड ही इज लाइक कि गाड़ी में तेल है. मैं बोला डलवाना है, अभी डलवा लेता हूँ, यहीं पे डलवा लेता हूँ. बोलता हाँ हाँ फुल कर ले. तो मैंने वो हम्म, गाड़ी फुल करी, और मतलब मैंने अपनी बाइक की टैंकी फुल करी, और सरदार जी ने वो उसका बिल भेज दिया. ओके। तो वो कहते हैं कि भाई, मैंने पूछा कि अरे आप क्यों पैसे दे रहे हैं. बोलते हैं यार हम नहीं घूम पाते मोटरसाइकिल पे, पर तुम घूम रहे हो, हमें अच्छा लगा, तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, घूमते रहो, गजब बहुत गजब जरूरी हो. एंड दिस गाय इज गजब। समवेयर इन हिज 50 दैट आई एम टॉकिंग ओ अबाउट. वाह। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं. अघोरा भी मुझे मिला है ऋषिकेश में, और वो सारी चीजें, मतलब अलग 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 चीजें हुई हैं.
बहुत अलग अलग। अगर मैं सोचूं एक दिन बैठ के कि हाँ उत्तराखंड में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, केरला में क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो जैसे मैं कह रहा था पहले कि हाँ आज की डेट में मैं बैठ के सोचूं कि यार वो किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था, तो वो लगता है कि यार वो बहुत एक अलग चीज थी। कुछ किया था। वो हाँ वो एक मतलब इट फील्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, जो कि एक जिंदगी में बहुत गलत वाइब मुझे दे रहा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जब तू वो हुआ करता था यू वर वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू वर डूइंग व्हाट यू लव्ड, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें दोबारा उस ट्रैक पे जाना है। सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी कीन ऑन डूइंग इट ऑल ओवर अगेन, राइट। यू बिकॉज आर यू नॉट ओनली ट्रैवलिंग राइट नाउ, लाइक आपने लास्ट टाइम कब ट्रैवल किया था? लास्ट टाइम आई ट्रेवल्ड वाज आई वेंट फॉर 1,000 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर रोड ट्रिप इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। ओके। द थिंग इज अलोन या जहाँ पे फिर हम लोग, हाँ क्या, अकेले या फिर किसी के साथ? अकेले ही गया था, अकेले ही गया था। एंड द थिंग इज दैट द प्लेस वेयर वी लिव इन ऑस्ट्रेलिया is one of the most beautiful places to live in the world. ओके। So if I सिडनी। go 10 kilometers to the left, I live on the outskirts of Sydney. So वो जो ओके। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट ड्राइव आप देखते हैं कि सी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, वो सारी चीजें, दैट इज हाँ हाँ 15 हाँ, minutes फ्रॉम माय मूवीज में। हाउस। तो वी गो ओ फॉर वाओ। लाइक रात को ड्राइव पे निकल जाते हैं, वी गो थ्रू द सी क्लिफ ब्रिज, बॉल्ड हिल पे बैठ के यू लुक एट द पैसिफिक ओशन, इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल दैट समटाइम्स यू ट्रेवल 1,000 miles टू फाइंड इंस्पिरेशन, आपको नहीं मिलती, और कई बार इंस्पिरेशन घर से बाहर निकलते ही आपको मिल जाती है। तो वो या। आई थिंक ट्रैवलिंग और प्लस कोविड ऑब्वियसली हैज हैम्पर्ड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं राइट। that has played its own role. But as soon as COVID get like somehow subsides, the situation gets better in Australia, I'll probably go to Northern Territory now. ओके। That is on the cards. व्हेन यू वर 22, मतलब मैं 22 हूँ तो मैं 22 बोल देता हूँ, बट ऑडियंस में बहुत सारे लोग कोई 17, 18, 20, 24 कुछ भी हो सकता है किसी भी एज ग्रुप में। जब आप 20 थे, अपने अर्ली 20s में, तो कुछ गोल सेट करते हैं सब लोग कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अंबानी बन जाएंगे, या फिर कुछ नहीं हुआ तो एक्टिंग कर लेंगे। मतलब बहुत सारे गोल्स होते हैं ना अलग अलग लोगों के। तो ऐसे कौन से गोल्स थे जो कि आपको अभी भी लगता है कि यार ये कहीं मिस आउट हो गए, या फिर ये वाले बहुत ही इम्प्रैक्टिकल से थे? एंड व्हाट आर योर थॉट्स? मतलब बहुत सारे थॉट्स चेंज होंगे 10 साल में, तो व्हाट आर योर थॉट्स नाउ? There was one dream that I always had, which was joining the Indian Army. It was like वो आज भी एक पैरेलल लाइन पे चलता रहता है, ठीक है। वो हमेशा मतलब आज की डेट में भी कहीं ना कहीं मेरा दिल करता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, और शायद यू नेवर नो, later in life I might join it, कभी ना कभी, because I believe in destiny, जहाँ ले जाए। तो वो सारी चीजें हो रही हैं, और एक ऐसा चीज था कि I wanted to travel the world, and in ओके। specific was this one continent which is Africa, right? ओके। So वो अफ्रीका ट्रैवल करने के लिए, एंड दैट टू ऑन अ मोटरसाइकिल, इट वाज वेरी स्पेसिफिक। तो मैंने ओ। उसके ऊपर ओके। बहुत बहुत रिसर्च किया, सारी चीजें करी, एंड एक मोटरसाइकिलिंग कंपनी को प्रपोजल भी डाला, वो प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया। दे वर लाइक कि हाँ इसको करना है, विल डू इट, और वो सारी चीजें। एंड देन इन द मीनवाइल, बिकॉज आई वाज, वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी पैरेलल में चल रही थी, एंड आई हैड टू गेट आउट ऑफ इट। सो आई वाज लाइक मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं रुक गया, वो रह गया। एवरीथिंग वाज फाइनल, हर चीज सेट थी। मैं या। जो एक सपना बचपन से देखा था, मैं पूरा करने जा रहा था, पर वो उस टाइम पे मे बी लाइफ हैड अदर प्लान्स, मे बी इट वाज नॉट माय टाइम। सो राइट। मैं नहीं आ गया, और वो कहीं और रह गया। बट मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि आई फेल्ड इन अ वे, कि राइट। मे बी जो आपका सपना था वो पूरा नहीं हुआ, वो मैं पूरा कर गया। इज जस्ट दैट ये मेरा टाइम नहीं था, एंड एज आई सेड राइट। कि मे बी लेटर इन लाइफ, this time I'll do it with my own money, and this time I'll do it not from the sake of creating content for Instagram. Content. Yeah. You hate the word content. Why? We had a conversation. Tell the audience, why do you hate the word content? So all those people, man, this is for the audience whoever is watching. Instagram में एक feature होता है where you can hide certain comments or messages.
if they Yeah. have this one particular word in them. तो वो मैंने filter में content डाला हुआ है. So the reason is that I don't create content. Okay. The word content is something that you have to, you know, एक बहुत commercial सा sound करता है, और जबकि all the things that I've done in my life have come straight from my heart. अगर मेरी चीज Right. दिल से नहीं आ रही ना, तो मैं उसको करता ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता. और कोई आर्ट कंटेंट नहीं है मेरे लिए. Right. तो मैं जो काम करता हूँ वो आर्ट है, वो मेरा आर्ट है. Yeah. दिस इज माई क्राफ्ट, दिस इज हाउ आई डू इट. आपने 1000 लोग देखे होंगे जो पोइट्री करते हैं और पोइट्री को एक तरीके से पढ़ते हैं. मेरी पोइट्री है, जो मेरी पोइट्री है उसको मैं अपने तरीके से पढ़ता हूँ. दैट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट. और फिर उसको Yeah. अगर आप कंटेंट कहते हैं, उसको आप एक बहुत कमर्शियल सा एक नाम दे देते हैं, तो वो दैट कहीं ना कहीं वो इट हर्ट्स माय सेंटिमेंट्स, बिकॉज आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट व्हाट आई डू. तो वो Yeah. कंटेंट, like I think this is, I hate the word content because I prefer creation over curation in a Yeah. way. So I think content curate करते हो आप, Right. art create तो आज करता से है. कोई भी कंटेंट वर्ड या कंटेंट वर्ड नहीं कमेंट करना है ओल्ड स्कूल It बास्टर्ड really के triggers me, पेज पे. really. या आई थिंक कंटेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द आर्ट यू डू. मतलब अगर ये बात हम कर रहे हैं अभी, इफ आई पोस्ट इट आउट फॉर लाइक कमर्शियल रीजंस, यूट्यूब पे मैं डाल दूं, स्पॉटिफाई पे डाल दूं, आई थिंक दैट विल बी कंसीव्ड एज कंटेंट फॉर द वर्ल्ड. बट Yeah. जब तक ये बात बात है, तो आई थिंक इट्स अ कन्वर्सेशन. अगर ये आप इसमें अगर अपनी पोइट्री ऐड कर दो तो इट विल बी आर्ट. तो मतलब मेरा थोड़ा परसेप्शन वैसा है इस चीज को लेके. और एक और चीज है कि आई थिंक कंटेंट जो होता है, जो आप क्रिएट करते हैं, कंटेंट जो होता है, आई थिंक इट कम्स विद एन ऑब्जेक्टिव. I believe and somehow like would like to say that art doesn't have an objective apart from the satisfaction of creation and enjoying the process. Content जो आता है उसका एक objective होता है, उसका एक goal होता है कहीं ना कहीं. So Right. my goal is to just be happy while doing it, and that is it. Right. And that is why I That's pure. kind That's of why people love you, I think. I've been lucky that way. I've been lucky that way, to be honest. I और think you've not been lucky. You have manifested it out. So yeah, please. yes. तो इसी तरीके से हुआ कि कंटेंट क्रिएट करना, आई थिंक दैट्स द इजी वे आउट. Yeah. अभी क्या सीन मैं बताता हूँ कि द रीजन आई यूज बॉलीवुड वीडियोस, द रीजन आई यूज एक्ट्रेसेस, मरूफ भाई के साथ जो मेरा कोलैब हुआ था, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. द कोलैबोरेशंस Recent जो दैट आई आपने लव, भी पोस्ट किया था. जो मरूफ भाई के साथ मेरे को कि ऐसा क्या लिखूं वो तेरा हो जाए. तो वो जो वो कहानियां लेके आते हैं कहीं से, और वो कहानियों को कहते हैं कि इस कहानी को आप एक पोएटिक वे में डिस्क्राइब करो, तो वो मुझे भी पुश करता है आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. और फिर Right. आप तो इस तरह के कोलैबोरेशंस मेरे को बड़े पसंद आते हैं. और द रीजन आई वांट, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड वाज कि मैंने वो देखी थी, फिर ले आया दिल. वो सॉरी, वो गाना सुन रहा था और उसका बर्फी. वीडियो देख रहा था. और हाँ. बर्फी बर्फी. तो और मैं ऐसे ही मेरे हाथ में मैंने वो रकीब लिखी हुई थी कि अरसों बाद मिला हूँ रकीब से, और वो पीछे बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा था. और जब मैं उसको नरेट कर रहा था और वो पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, तो मेरे को लगा कि यार ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सुनने में. तो फिर मैंने Surreal उसको experience रिकॉर्ड, होगा वो. हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया और उसकी मैंने एक ऑडियो फाइल बनाई, और वो ऑडियो फाइल मैं सुनता था. वो तब तक अपलोड नहीं करी थी ऐसा, वो मैं सुनता था. और अपलोड तो मैंने उसको बहुत बाद में किया है. तो आई थिंक वहां से इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज इट वाज वेरी नेचुरल. एवरीथिंग वाज सो नेचुरल कि Yeah. वो गाना सुना, पोएट्री नरेट करी, अच्छा लगा. मरूफ भाई को शूट किया, अच्छा लगा, चैलेंज किया, लिखा. तो वो एक तरीके से हमने उसको बहुत नेचुरल तरीके से हर चीज को हम लेके आए. तो वो कंटेंट इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ट्रिगर होता हूँ. हाँ. ठीक है. तो what we'll do now is I have
like 1 or 2 questions remaining. पर Yeah. 2-3 लोगों को लाइव लेते हैं साथ में. बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं. People are like dying to have a conversation with you. So whoever wants to get onboarded on this live chat can send us a request. Request कर सकते हो आप join करने के, and we'll take some random people live with us. आपकी फैन फॉलोइंग खतरनाक है भाई साहब, मतलब आते ही जा रहे हैं. रुकिए. Lucky. I Manifested. think, yeah, manifested. I also have just one question. जब तक कोई लाइव कर रहा है third person, what are your thoughts on destiny and manifesting things? Like, what do you believe in? दोनों में से. I believe in the power of manifestation now. मैं बहुत strongly believe करता हूँ कि अगर आप नहीं believe करते हैं तो use it as an excuse to pursue your dreams. कि अगर आप dreams को manifest कर रहे हैं, अगर आप manifestation में नहीं मानते हैं और आपको लगता है आपका ड्रीम बहुत डिफिकल्ट है, तो आप उसको उस तरीके से परसू कर लें. Hi. Oh my God. Thank you so much for adding me. Yeah. I'm just a doorway. आप लोगों को मिलाने के लिए. Please have a conversation. If you have a question, you get one question. Ask him any question. First of all, thank you so much for adding me. I'm just speechless right now. तो मैं भी ऐसे कुछ लिखती. It's lagging, I think. It's totally fine. Take your time. Am I audible? Yeah, you are. Yeah. Okay. तो I think lag issues हैं. आपकी फेवरेट शायरी जो आपने कही. Am I audible? जो मेरी फेवरेट शायरी थी. Yes. मैं आपको रकीब ही सुना देता हूँ. It is very close to my. हाँ बिल्कुल. अरसों बाद मिला हूँ तो जल उठा है महबूब मेरा. अरसों बाद मिला हूँ रकीब से तो जल उठा है महबूब मेरा. बड़ी सादगी से करता है इज़हार मोहब्बत जब भी करता है महबूब मेरा. That's so sweet of you. Super. Thank you so much for joining us live. Please. May I take one screenshot? Yeah, please. Do you want me to go away from the frame? No. Please. Yeah, you can. आप मुझे क्रॉप कर दोगे वैसे भी बात मुझे पता. ठीक है. ठीक है. नहीं. Thank you so much. What's your name? Am I audible? Yeah. I think it's buffering because of network issue. My name is Achal. Okay, Achal. It was great having you live. Thank you so much. Yeah. We would request you to please off kar do live. We'll take. Okay, sure. Thank you so much. Yeah. Okay. We'll take 1 or 2 more people and. But yeah, as we were saying, yeah, if manifestation can become an excuse for you to pursue your dreams, why not? 100%. Why not? Yeah. I think गलत बंदे को ज्वाइन कर लिया अपन ने. Just wait for a moment. Sorry, sir. Yeah. Take your time, please. I think वो लेटा हुआ था बेचारा सोने के लिए. हमने डिस्टर्ब कर दिया उसे. No. Hi, guys. Hi. Oh my God. I love your jacket. I love your jacket. Thank you so much. Jay sir, I really want to say something. हाँ जी बिल्कुल. मैम सर एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक पोइट्री लगाई थी ना, आपको टैग करा था, आपको याद हो तो. एंड ताई जी के बारे में कुछ स्टोरी बताई थी मैंने. I don't
precisely remember, but देखूंगा तो याद आ जाएगा. गुमनाम शहर की वो लड़की थी, गुमनाम शहर की वो हो गई. याद है आपको? बट नहीं याद आएगा, देखूंगा तो याद आ जाएगा. ओके, कोई बात नहीं. तो जब आपका मैसेज आया था ना कि बहुत खूबसूरत मेरे भाई, आई लिटरली से कि मेरा दिन बन गया था उस दिन. Oh, now I remember. एंड आई वॉज शॉक्ड कि मेरा मतलब मेरी स्टोरी पे कोई रिप्लाई कर नहीं सकता था. मेरे को पता नहीं था. मैंने बोला शिट यार, शिट, ये बहुत गलत हुआ. लेकिन फिर 2 घंटे बाद आप इनबॉक्स में गए एंड आपने मेरे इनबॉक्स में जाकर लिखा पूरा. वो मुझे जो फील हुआ सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. Now I remember that. Now I remember that. This is something that I do because पता है क्या है, when I was writing, और हम लोग कई बारी लिखते थे, और हर किसी इंसान की एक वो होती है कि वो अपने काम को थोड़ा सा डाउट करता है Yeah. कि ये अच्छा है या नहीं है या नहीं है. तो कहीं ना कहीं that social validation plays a role. And when I was in that phase, तो मेरे को कभी कभी बहुत जरूरत होती थी एक उस रैंडम मैसेज की, कि मेरा काम किसी ने सुन लिया, कि मेरा काम एक ऐसे शख्स ने सुन लिया जिसको मैं जानता भी नहीं. वो सारी तो वो एक बहुत जरूरी होता है. इट गिव्स यू अ पुश टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड I love doing that for people who are in need of it. Absolutely, sir. Or the color of your jacket, I'll tell you why is that special. So when I was working as a cleaner in Australia, I used to wear a jacket in color. Oh, and it's an appreciation point fee for me, sir. So the moment I saw the color of the jacket, my mind initially I was like, boom, I'm there. मतलब थैंक यू सो मच. आपको कुछ चीजें याद आ रही है मेरी वजह से? नहीं, Keshav, please keep texting me every now and then, and we'll stay connected on DMs for sure. Okay, thank you, sir. Sir, can I take a screenshot? 100%. Yeah, please. You can crop me later. हाँ, मतलब मैं बार बार मूव करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा. तो everyone who's going to join, मुझे crop कर देना. So why would I crop you? You are the reason for meeting. नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार. मतलब all old school. Thank you so much, sir. Thank you so much, Thank you so much. Keshav, for your time. आप leave कर दो. And thank you for joining. Good night. Thank you. Bye, sir. Bye. See you soon. Sir, तो एक दो लोग और लाइन ले लेंगे. Do you have something to like attend call वगैरह? नहीं. Nothing. Okay. ठीक है. तो हाँ, मतलब मेरा एक probably last question है, जो कि important है. क्लीनर की आपने अभी बात की, तो वो कन्वर्सेशन से कहीं स्लिप आउट ही हो गई थी. पीपल डोंट नो दैट यू यूज्ड टू वर्क एज अ क्लीनर. लाइक आपने टॉयलेट्स भी क्लीन किए हैं एंड आपने वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स क्लीन किए हैं आपके मैनेजर के अकॉर्डिंग. तो टेल अस मोर अबाउट दैट फेज. So initially when I was in India, coming from a defense background, वो सारी चीजें, और हमें लगता था स्ट्रगल होता है कि डैड के रूल्स को फॉलो करना, दैट इज स्ट्रगल. वो सारी चीज, मेंटल हेल्थ से आप जूझ रहे हैं साइड बाय साइड. और व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया आई वाज नॉट ओके. आई वाज स्टिल ऑन पिल्स. और आई थिंक वो इधर ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, मैंने उस डब्बे के अंदर आज भी वो थैली है. I've kept those pills that I used to take as a souvenir of what I went through. wow. मैं 3 घर शिफ्ट कर चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बट वो उसको मैंने कभी पीछे नहीं छोड़ा. और इस बार भी जब मैं मूव कर रहा था तो मैं उसको साथ लेके आया हूँ. सो आई वाज स्टिल गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत, मतलब द थर्ड वन वाज द वर्स्ट दैट आई वाज गोइंग थ्रू. और वेट बढ़ चुका था बिकॉज टैबलेट्स ले रहा था बॉडी को रिकूप करने के लिए. आई हैड गेन्ड समवेयर अराउंड 22 kilos all of a sudden. And इधर आया, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आया. और उज्जवल है मेरा भाई है वो एक तरीके से. he's also my, we met while traveling. That is how we started.
एंड आई रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मैंने डैड को मजाक मजाक में कह दिया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, और उसके बाद डैड मेरे को बोलते हैं कि हाँ ठीक है तू देख ले, तेरे को जाना। तो डैड को लगा कि मजाक कर रहा है, बट मैं सीरियस था बिकॉज आई वांटेड अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। एंड देन उसके बाद क्या सीन हुआ कि मैंने डैड से पैसे नहीं लेने थे, तो मैंने उज्जवल को कॉल किया। मैंने बोला उज्जवल, आई हैव टू फिल अप द फॉर्म फॉर दिस यूनिवर्सिटी दैट आई एम अप्लाइंग फॉर एंड द फॉर्म इज $100. कैन यू गिव मी $100? एंड उज्जवल गेव मी $100. आई फिल्ड अप द फॉर्म, आई गॉट थ्रू। पहले का भी एक्सपीरियंस था, वो सारी चीजें, तो आई गॉट थ्रू, आई गॉट अ स्कॉलरशिप एज वेल। तो फीस काफी हद तक माफ हो गई थी। सो मैं आया, मैंने यहाँ पे जितने भी मैं इंडिया से जितने भी मेरी जो सारी समेट के मैं जो आया था इधर, वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे, एंड आई वाज इन डेस्परेट नीड ऑफ जॉब। तो वहां पे फिर जो इनिशियली पेट्रोल पंप पे भी काम किया, और उसके बाद पेट्रोल पंप पे इतने पैसे नहीं मिलते थे, एक्सप्लॉइट किया जाता था बिकॉज अंडर पे करते थे स्टूडेंट्स को सारी चीजें। फिर एक चीज हुई जहाँ पे मुझे क्लीनर की जॉब मिली, एंड दे वर लाइक कि आपको रात की शिफ्ट होती है, और ये द स्टोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वूलवर्ड्स। और वूलवर्ड्स इतना बड़ा स्टोर होता है जितना अपने वहां पे वो होते हैं शॉपर स्टॉप, उसका भी प्रोबेबली ट्वाइस और थ्राइस द साइज। और मैं रात को अकेला बंदा होता था जो पहले उसको डस्टिंग करता था, और फिर उसके बाद उसकी मॉपिंग करता था, उसके बाद स्क्रबिंग करता था। मतलब वो पूरे स्टोर को बेसिकली 3 बार मैं साफ करता था। रात को 3 बजे मैं शिफ्ट चालू करता था, जिसके लिए मुझे रात को 1 बजे घर से निकलना पड़ता था, और फिर मैं 8:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी, मैं फिर ट्रेन पकड़ के आता था, अपनी क्लासेस अटेंड करता था। तो इस तरीके से मेरा रूटीन चलता रहा काफी टाइम तक। फर्स्ट डे आई रिमेम्बर, मुझे लगा स्टोर क्लीन करना है, वो तो करना ही था। एंड माय जो कॉन्ट्रैक्टर था, फर्स्ट थिंग ही डज इज टेक्स मी टू द टॉयलेट, एंड it takes me to the toilet and I'm really awkward. That's where I realized that I'm so entitled. I'm so entitled that I've never even cleaned my own toilet. Okay, that is. And then he says, listen, there, it's, sometimes it's okay, but sometimes people do have some party in the pot. And I was like, okay. But I'm in dire need of money. I need money, so I will do it. Yeah. And then I remember there was one day there was a party in the pot and I cleaned it. And slowly, gradually, the first thing that I used to do after I entered, so toilets were supposed to be cleaned at the end. Okay. But the first thing that I did every time I walked into the store was to clean the toilets first. So that मैं मतलब पूरा स्टोर साफ करने के बाद थक के टॉयलेट साफ ना करूँ, मैं टॉयलेट अच्छे से साफ करूँ। मुझे टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ करना है, that was my motto. And one day there was an inspection and my contractor comes and is like, oh my god, I've never seen this toilet so clean. You're a world-class toilet cleaner. And that made me so happy. I was like, oh my god, I used to hate cleaning toilets and now I love cleaning toilets. So that's how I started. फिर क्लीनर से ही एक और क्लीनर की जॉब मिली. So this will come as a surprise to most of the people who know that I've got a government job. So initially I started off as a cleaner in the same office. So वहां पे जाता था and I used to do somewhere around 34,000 steps or somewhere between 30 to 34,000 steps every day because पूरा दिन घूमना होता था. उसमें क्या होता था, जैसे कोई कस्टमर आता है काउंटर पे, तो कोविड का टाइम चल रहा था और उसको नेक्स्ट कस्टमर आने से पहले उसको वाइप डाउन कर देना है, हर चीज जहां पे भी कोई हाथ लगाएगा उसको साफ कर देना है. तो आई यूज्ड टू डू समवेयर अराउंड 34,000 स्टेप्स एवरी डे. आई रिमेम्बर इस क्लीनिंग वाली जॉब पे मेरा दूसरा दिन था. दूसरे दिन की शिफ्ट खत्म करके मैं आया हूँ, तीसरे दिन मेरा जाने का मन नहीं है. रात को आई गेट डाउन फ्रॉम द बेड, आई पुट माई फुट ऑन द फ्लोर, और जो पैर की सोल होती है ना, उसमें ऐसा दर्द हुआ कि मेरी चीख निकली. एंड आई रियलाइज्ड ऐसा भी पेन होता है क्या. सो दैट यहाँ पे भी पेन होता है, पहली बार पता चला. वही, काफी सारी चीजें पता ही नहीं थी कि बॉडी में ऐसा भी कुछ होता है. एंड देन 7-8 महीने तक वहां पे एज अ क्लीनर जॉब किया. एंड देन वन डे आई रिजाइन्ड एंड माय मैनेजर वाज लाइक, आई डोंट वांट यू टू गो. आई वाज लाइक, आई एम गोइंग बैक, मेरा हो गया, मेरी बस हो गई. एंड देन शी इज लाइक, इफ यू कैन. सो आई यूज्ड टू थिंक ऑफ हर एज अ मदर ऑफ माय ओन. Like,
Yeah. my Aussie mom, as Okay. I would. So, and she was like, "Can I ask you for a favor?" I was like, "What?" She's like, "Can you give an interview for me?" And then I gave the interview. I got selected, and I was the only guy on temporary visa in the entirety of Australia to be on a government job, and My God. started off as a cleaner in the same office. So वो फिर when I told my dad, and in the meanwhile मैंने डैड को शुरू में बताया नहीं था कि मैं क्लीनर था. मॉम को बताया था कि मैं कार वॉश पे जॉब करता था. कार वॉश पे जॉब करते करते दिन की आप 40-50 गाड़ियां धो रहे हो, एंड आई एम 6 feet 2. तो वो जब झुक Okay. के गाड़ी साफ करनी पड़ती है तो उसके बाद आपकी कमर में दर्द. आप 9 घंटे की शिफ्ट खत्म करके आ रहे हैं और आपकी कमर आप सीधे चल रहे हैं तो भी आपको लग रहा है कमर झुकी हुई है. याद है 10 मिनट बचे थे बस आने के लिए. मैं बस स्टॉप के ऊपर, मेरी कमर इतनी दर्द हो रही थी, मैं बस स्टॉप के साइड पे बस लेटा ही था. एंड आई वोक अप आफ्टर 1.5 hours. I was so tired. I slept on the road. And then I was like, भाई मुझसे नहीं हो रहा है ये. But I kept doing it. But वो होता है ना कि you have taken a hard decision. Now my survival instinct has triggered in, and now Yeah. I'll keep doing it. And now I proudly say that I'm a cleaner and I'm a world-class toilet cleaner. So if I can Yeah. if I can clean toilets world class and I can be proud of it, there is nothing that can bring me down. There is Right. nothing that can सही bring me बात down. है. So I think becoming a cleaner was one of the best decisions in my life, and it beats the entitlement out of you. You're Yeah. not entitled anymore. And once you are not entitled, you are very powerful as a person. Yeah. You can face any kind of criticism दुनिया का उसके बाद. Yes. Yes. Yeah. Yes. So Nice. I think आपके हिसाब initially से racism. Uh-huh. हाँ, this is something which was on my mind कि Australia is known for, used to be known for racism. So is it still there? Is it still like in presence? So antisocial elements are always there, and I think racism, it's not just Australia, it's everywhere. You go to US, you go to India, North Indian, South Indian, Yeah. Yeah. Bihari, सारी चीजें which हाँ we हाँ use बहुत ज़्यादा. in everyday terms. But अगर आप उनको from a larger perspective आप सोचें, they are very wrong. They are racist terms, Right. right? ऑस्ट्रेलिया में भी वही एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं एक दो दिन. एंड आई क्लीनर ने क्या किया ना, क्लीनर put me so down and it made me so humble that initially when I was entitled, racism used to hurt. And now that I was not entitled anymore, racism didn't hurt me. Now I gave it back. And that's when the other person who was trying to be racist with me had no idea, because he was not used to getting it back from a brown guy. And then like अगर आप एक घर में छोटी सी वो बात होती है, एंड आई थिंक एवरीबडी हियर विल रिलेट, कि आपके घर में काम वाली बाई आती है, ज्यादा आप बात भी नहीं करते हैं उससे, वो आपके रूम में आती है, पोछा लगा के चली जाती है. मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, हमारी भी कुछ क्लीनर्स हुआ करती थी जिनसे मैंने बात नहीं करी थी. जब मैं क्लीनर बना, आई रिमेम्बर टॉकिंग टू देम 45 minutes. एंड जब मैं रूम से जा रहा था, वो रूम छोड़ के जा रहा था, आई लेफ्ट अ नोट फॉर देम बिकॉज आई रियलाइज्ड कि हाउ डिफिकल्ट ऑफ अ जॉब इट इज. And I think that's all that happens when you lose entitlement in life. Yeah. What do you consider your biggest failure in life? जहाँ पे आपको लगा हो कि इससे ऊपर अब मैं उठ ही नहीं पाऊंगा दोबारा, या फिर ये तो जिंदगी तबाह हो गई, वैसा वाला मोमेंट क्या था? And how did you like cope up from that? 2018 में था ये मोमेंट, और very significant in my life. 2018 में when I was, so motorcycling was like photography and everything, monetary इतना stabilize नहीं कर रहा था मुझे. So what I did was, and this was very wrong, एक YouTube पे इतना फेमस कोई व्लॉग नहीं था, तो वो व्लॉग था, उस व्लॉग की मैंने एक छोटी सी क्लिप उठाई, नॉर्मल सी क्लिप उठाई, उसके ऊपर एक रैंडम शायरी जो
यूट्यूब पे मुनीर नियाजी साहब की एक वॉइस ओवर थी, तो वो वॉइस ओवर यूट्यूब से लिखा और वो उस व्लॉग के वीडियो पे लगाया और जो नरेशन थी उसका क्रेडिट दिया कि मुनीर नियाजी है। जो ऊपर वो जो वीडियो थी, बिकॉज आई वॉज इनटू मोटरसाइकिलिंग, सो आई वॉज लाइक कि हाँ, मैंने उस वीडियो के कोई क्रेडिट नहीं दिए, बेसिकली वो वीडियो मैंने चुराई एंड आई अपलोडेड इट ऑन माई Instagram profile. And the moment I uploaded it, I felt so guilty. I felt so guilty कि ये क्या कर दिया तूने. Whatever you have done so far, you have just nullified everything that you have done. And this is way back. But, you know, this was 2018. I had somewhere around... Yeah. How many followers? I think somewhere around 12,000 of... Between 12,000 or 14,000 followers. Somewhere around that. और उनके सामने मैंने एक मतलब चोरी करके अपना मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया कि भाई आई एम गेटिंग बिग प्रोजेक्ट्स नाउ, सो यू शुड हायर मी एंड देन यू नो पे मी मनी, दिस एंड दैट। या टिपिकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्टफ। सो वो मैंने किया। मोस्ट ऑफ पीपल डू दैट, इट्स जस्ट दैट कि लोगों को उस चीज का गिल्ट नहीं होता। लाइक देयर इज अ क्राउड, एक सेपरेट क्राउड है 70% जो कि लोगों का काम चुरा के खुद को नाम दे देते हैं, बट फिर उन लोगों को गिल्ट फील नहीं होता। आई थिंक देयर इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। सो यस, वो गिल्ट मैंने कैरी किया, करुण ने वो गिल्ट मैंने कैरी किया बहुत साल तक। एंड इट वाज आफ्टर आई गॉट फेमस। ये यहाँ पे समवेयर अराउंड, आई थिंक आई हैड some, I don't remember exactly followers, but they were in 100,000 somewhere, more than that. And I went back to that day. I went back to that day in front of those hundreds of thousands of followers. And I put up a story. I was like, listen, this is what I did. I stole a video from a random YouTube blog, put Munir Niazi's poetry on it, and called the vlog mine. Not the recording, the vlog mine. And that was one of the worst mistakes that I could have ever done. And that was my biggest failure. But that failure also became my success the moment I realized कि ये तूने गलत कर दिया है और इस चीज को तू दोबारा कभी नहीं करेगा. And I think that one post, I still have it in my archives. और कभी उसको अनआर्काइव करके आप लोगों को I'll share it with you guys what I had done. The biggest failure of me as a person, stealing something from a random person. I think that was my biggest failure. Got it. I have just one last question. जो कि मैं आपको भी question दे देता हूँ, but we'll take 2-3 more people live quickly and end this session. वो question ये है कि आपके अभी तक की जर्नी में, you're 30 right now, आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, तो give a 20-year-old self एक piece of advice जो आप देना चाहते हैं कि यार कोई मुझे बता देता, मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मुझे ये चीज पहले पता चल जाती तो शायद मैं वो गलतियां नहीं करता, वही what not to do। तो वो piece of advice ये आप मुझे आंसर करना once we take people live, उसके बाद। This is the last question for this session. Okay guys, जो भी लाइव आने वाले हैं प्लीज कीप इन माइंड कि एक क्वेश्चन पूछेगा एंड प्लीज क्विट दिस क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। नितिन भाई के पास भी आई थिंक हम लोगों के एक्सपेक्टेड टाइम से काफी ऊपर जा चुका है ये चीज, तो आई एम टेकिंग ओके आई हैव अ फ्रेंड हियर इन द लाइन। नितिन भैया, मतलब कल जब मैंने स्टोरी डाली ना तो मैंने पहले किसी को नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। His name is पल्लव। तो he was like, भाई तू ओल्ड स्कूल बास्टर्ड के साथ लाइव जा रहा है, प्लीज टेक मी लाइव, दिस एंड दैट। तो I was like हाँ मतलब हाँ। तो he will join us for a minute. Yeah, he is like a big time fan of your work. मैंने recently आपको follow करना start किया from past 6-7 months, but I think he's been following you for a long time now. पल्लव, right? सही से देखा मैंने टुकड़ों में टूटते हुए। भाई मैंने तो कितनी ताकत से देखा हूँ उसको, सोचो। हाँ ना, मैंने कितनी ताकत से देखा है ना, इतना लंबा वो विवेक को ना पानी की बोतल बोल दो, रॉकेट छोड़ रहा है बैग में। तुम आगे विवेक इधर आ, तुमने ये दो पल्लव कैमरा चालू है। हाय डूड, रोटी किसकी?
सर बिग फैन. Hi, Pallav. हाय हाय. आपकी बातचीत सुन रहे थे यार हम लोग, मतलब थोड़ा और चल. अरे सॉरी डूड, तूने वो किया, मतलब हम लोग है ना बैठे हुए हैं यार बाहर में, तो तुझे बताता हूँ. हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिस इज अ प्लेस, एक ढाबा है, ठीक है, आग वाग जलिए, और हम स्टार्स देख रहे हैं. तो अभी हमको एक कॉमेट दिखा है, और वो इतना बड़ा कॉमेट था, लिटरली वो इतना बड़ा कॉमेट था कि बहुत टाइम दिया उसने देखने के लिए. तो लोग वही एक ऐप है ना स्काई व्यू, जिसकी हम बात कर रहे थे, तू नहीं बताई थी मुझे, वो वाली ऐप पे हम लोग पूरा अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब एकदम गांव साइड है, तो पूरे स्टार्स एकदम क्लियर दिखते हैं. ओके सर, कर लो बिग आप फैन. एंड उसके बाद हाँ मतलब अपन कर लेंगे. नहीं, मुझे लगता है उन्हें भी इंटरेस्ट होगा 100%. नहीं, I love stars. I love astrophotography. क्योंकि शायर इंसान बिना तारे देखे शायर नहीं हो सकता. ठीक So है. how it's I'm good. Probably might not be a comet, might be a meteorite. yeah, I guess comet or meteorite something. But yeah, ठीक है. I'm good. पल्लव, अभी के लिए ड्रॉप करते हैं, अपन Yeah. बात करते हैं. Thank you so for much. joining. Dude. Bye. और कोई है जो, आई थिंक एक कमेंट बार बार पॉप हो रहा था, जो या दिस वन, जो कि बहुत ज्यादा देर से वेट कर रहे हैं शायद टू जॉइन द लाइव. वी जस्ट एक सेकंड. आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं ज्यादा एम्बैरेस्ड. Hi. Am I audible, sir? Yeah. Yeah. So yeah, this is Utkarsh. मेरा यूजरनेम बेलिहाजी है, क्योंकि I mean I was just listening to your story and it struck a chord with me, क्योंकि right now I'm going through that phase. And अभी जैसे भैया ने अभी just आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप अपने 20-year-old self को क्या एडवाइस दोगे. I'm looking forward to that advice, क्योंकि I'm myself a struggling poet and like original content बना के Instagram अब थोड़ा tiring सा हो रहा है. I'm on meds too, so yeah, it just struck a chord with me, or like struggle. Abhi I'm through that phase, so made me emotional. So don't mind me. Can I please just perform something in front of you people? And मतलब it could be short and it could be like एक मेरे पास 3 मिनट का piece है और दूसरा मेरे पास 35 seconds का है, तो it's your choice. क्या करूँ मैं? Anything you want. Nitin bhaiya, take the call. Yeah, anything you want. Yeah, okay. So I'll go. So बात ऐसी है कि अभी के टाइम पे सर ऐसा बहुत होता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं और हम उन्हें खोलते नहीं हैं, एंड वे लाइक समटाइम्स जस्ट नोटिफिकेशन देके छोड़ देते हैं, मूड नहीं होता है खोलने का. तो उसी एक्सपीरियंस में मैंने एक पोएम लिख लिया है. दिस इज हाउ इट गोस. आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली. Yeah, you are. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोस. फोन की घंटी आज फिर बजी है और मैंने आज फिर सिर्फ अपने नोटिफिकेशन से उस मैसेज को देखकर छोड़ दिया. बात यह नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता, पर बातों बातों में सवाल जवाब भी होने लगते हैं, और शायद मैं सबसे पहले सवाल से ही डरता हूं कि तुम ये ना पूछ दो कि तुम कैसे हो. कैसे बताऊं कि मैं कैसा हूं. दुनिया तेज है, बातें तेज है, मैं बोलूंगा आई एम गुड और बात आगे बढ़ जाएगी. मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारे पास लंबे जवाबों के लिए वक्त है. तुम्हारे उस एक सवाल से मेरे मन के 1000 सवाल जाग जाते हैं, जिनका मुझे पहले खुद को जवाब देना होता है. और जब तक मैं तुम्हारे लिए एक जवाब तैयार करता हूं, तब तक वक्त निकल जाता है. नजरअंदाज मैं तुम्हारे सवालों को नहीं, बल्कि अपने जवाबों को कर रहा हूं. मैं खुद से नहीं पूछना चाहता कि मैं कैसा हूं. दूर में तुमसे ही नहीं, खुद से भी हो रहा हूं. भाग में तुमसे ही नहीं, खुद से भी रहा हूं. इज्जत है तुम्हारी. I think buffer ho raha hai. But I really like the way he narrates. There is intensity in the way he's doing it. I think I don't understand the world of poetry that much, but as an audience perspective, मुझे बहुत touching लगा. मतलब yeah, still there. Please continue. Yeah, okay, I'm very sorry. No, it's okay. दूर में तुमसे ही नहीं, खुद से भी हो रहा हूँ. भाग में तुमसे ही नहीं,
खुद से भी रहा हूँ। इज्जत है तुम्हारे लिए इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहता, फिक्र है तुम्हारी इसलिए सच भी नहीं बोल सकता। तो चलो खोल दिया मैंने चैट बॉक्स, कर दिया रिप्लाई, कह दिया आई एम फाइन और हो गई बात। तुम जा चुके हो। और यदि तुम अभी सोच रहे हो कि मैं कैसा हूं, तो सच यही है कि ठीक नहीं हूं मैं। पर कल तुमने फिर पूछा कि मैं कैसा हूं, तो शायद मैं आधा सच बोल पाऊंगा कि ठीक नहीं हूं पर हो जाऊंगा। इस बार घंटी बजी तो फोन जरूर उठाऊंगा। थैंक यू। Damn, बहुत I absolutely love where you dropped it. I absolutely love where you dropped it. Last में जो आपने Thank you बोला, so much. ठीक नहीं हूँ पर हो Thank you so जाऊंगा. much. loved it. And So that is yeah, one advice that I give people. yeah, so that's how it has been, sir. So I mean, मैं रैप कर रहा हूँ, मैं पोएट्री कर रहा हूँ, सोशल इशू से बोल रहा हूँ, बट इट्स वेरी हार्ड ऑन इंस्टाग्राम कि आपको वो फोर्स करता है लगातार, वो एल्गोरिदम कि आप लगातार पोस्ट करो। एंड डूइंग इट विद कॉलेज एंड वर्किंग टू जॉब्स, साथ में खुद को केवल सस्टेन करने के लिए वो इंस्टाग्राम पे वो एल्गोरिदम को हैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो या इट्स जस्ट बीन दैट फेज। और साथ में वो भी आपने ऐसे कहा बिहारी वाला एस्पेक्ट कि सो मैं बिहार से ही हूँ और अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन, वो सारी चीजें, और अपने लैंग्वेज में चीजों को, इवन दो आई डू इंग्लिश पोएट्री, बट वो फील मेरे को प्रॉपर फील ओपन माइक्स में परफॉर्म करने में हिंदी में आती है, और यहाँ पे और मुश्किल ऑडियंस को। तो दैट्स बीन दैट फेज, इट्स हार्ड गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, बट या यू गिव मी होप सर, so thanks a lot for what you've done and what you've shared. That's what I wanted to say. I'm happy to help. And there Thank you is so there much is for one your time. that I would really like to point out anyway. This is one advice to everybody out there. Do not relate your work with Instagram in a way, and that will help you a lot. It will help you here as well. I'll tell you why. Yeah. What if one day Instagram comes and tells you that there is no algorithm? What will you do that day? One day when Instagram, TikTok एक दिन में गायब हो गया ना? Yeah, true. Yeah. एक दिन Instagram गायब हो गया, तो क्या करेंगे आप? It is what you are outside of Instagram that defines you. Instagram doesn't define you. No, it never does. Your real struggle will stay by your side whether or not Instagram is there or not. So focus on the struggle. Focus on what you are creating. Don't focus on whether it's being loved or not. If you like it, it's good. Thank you, sir. I mean, that's true. I don't really push myself as much, but I mean, there's this trend, right? Like getting fame in a day and all that stuff. I don't believe in it, and I believe what we do outside of our circles is right. But again, it's a medium, and you sometimes have that hope to just get something out of it. So every time you post, you have that hope of maybe 10 more people listen to it. So, I mean, that's something that I think about. But yeah, great advice, sir. Thank you. Pleasure. Thank you for your time. Stay connected with Nitin here, and also stay connected with me. I might help you with the music part. You just said you are into rapping. I know a few people who are into rapping, and अगर मुझसे कुछ भी help हो सकती है होना मेरे level पे, तो I would love to. Stay connected. Thank you. And yeah, take care. Yeah. Thank you. Yeah. Look after yourself. Yeah. Yeah. So we have this is again one. 9. Yeah, please. Yeah, this is one important topic. I'm glad he spoke about it, to be honest. The relativity between creating something and Instagram. And I will just simplify. I'll put it in one line. Instagram has got nothing to do with creation. Right. That is it. I think any platform has nothing to do with creation. मैं 3 साल से सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि पॉडकास्ट करूंगा, YouTube पे करूँ, Instagram पे करूँ, Spotify पे डाल दूँ. तो ये सब बहाने होते हैं जो हम खुद को दे रहे हैं कि रीच नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. मतलब ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये सब बहाने होते हैं. आपको जब करना है आप कर लोगे. नंबर्स आपको कभी नहीं रोक सकते कि मेरे इतने व्यूज आते हैं और ये सब. Now this is something that the moment I saw that mic in front of you, I was really happy because I've got one here, and this is something that I, I've never had a guest. I have a podcast where I usually like खुद कलामी वाली बात होती है जहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. The next guest that I'm gonna have
Like the first guest of my podcast is gonna be you, where I will ask you questions as a if you okay, I choose, would love to. where अरे I will ask बिल्कुल. you questions because I come from a generation which is older than you guys, but I would Like definitely comparatively. love to have a will definitely love to have your perspective on life and how it goes. But 100%. when I started creating, it was nothing about Instagram. So I think initially it was, and I was not being, my art was not being appreciated. The moment I stopped giving a fuck about, how many people are watching it, how many followers I'm gaining, that's when the magic happened. Because I focused entirely on art, not on Right. what the people like or not. Right. Okay, so we have like unfortunately again 8 minute बचे हैं इस live के before the Yeah. timer goes out. तो what's your one piece of advice जो मेरा question था. रेस्ट में आपका इस लाइव One के piece. बाद भी अब जान खाता रहूंगा. आपने गलती कर दी अपना नंबर देके मुझे, तो अब मैं जान खाता रहूंगा आपकी. बट हाँ, अभी के लिए इस लाइव के लिए. Yeah. So one advice that I would like to give for situations, because there are certain common situations that arise in everybody's life. Sometimes something to remember when you're down and out and you feel that ab nahi ho sakta. Remember, this is the time जहां से सब कुछ हो सकता है. जब आप शून्य पे होते हो, या तो वहां पे चीजें सब खत्म हो जाती हैं, या फिर वहां से सारी चीजें शुरू होती हैं. हर चीज की जो इकाई है ना, वो शून्य है. तो आप अगर शून्य पे हैं, इफ यू आर डाउन एंड आउट, कांग्रेचुलेशंस. This is where you'll start creating yourself again. So this is one advice for when you're completely, you don't feel okay, and it is okay to not feel okay. Second, always have a hobby. It will keep you going in times when you feel as if कि यार जिंदगी बहुत monotonous हो गई है. So have a hobby, and this is something that every army officer will tell you. It is very important to have a hobby in your life. They are very underrated. Whatever I write was a hobby. It is all a hobby. It's not commercial. I don't earn money from this. So it's all just a hobby, and this hobby has got me all of you. So understand the importance of it, and it feels very satisfying. And if you like it, it's good. Nice. I think ये तो मैं personally भी use करूँगा advice को, and I think everyone liked the whole live session. Thank you so much for doing this. It really means a lot to me. This will always remain very close to my heart क्योंकि मेरा पहला episode है. तो मैं 3 साल से सिर्फ procrastinate करते आ रहा हूँ कि करना है. And finally doing this with you is like amazing. I cannot express the feeling. Thank you so much again. Yeah, do you have any advice for me particularly? Like I tried to जो हम लोगों की कॉल पे लास्ट बात हुई थी, तो I tried to inculcate some of those things in this whole chat, but yeah, I saw that, and it was good. I loved it. Thank you. And keep doing what you're doing, Karunya. Keep doing what you're doing. I wish I was this confident. I wish I had this much courage when I was your age, honestly. I was still trying to figure out what life was, what the entire meaning of that situationship that I had with life was. But this is the thing about today's generation. The kids today, they are much more confident than we were. So kudos to you. Right. Kudos to you. And you have inspired me to have a guest on my podcast. So thank you. Definitely. I would love forward to it. मतलब अब आपने 400-500 लोगों के सामने बोल दिया है तो बोलना नहीं है. आप अपनी डेट्स मुझे भेज देना. अरे any time, any day for you. Thank you. Okay, thank you so much for being on this live. Thank you so much again. I'll be posting this. जिन लोगों ने miss out थोड़ा बहुत कर दिया हो, they can see the whole live on my feed.
अगर कोलैबोरेटिव पोस्ट आप ऑन करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर, तो आप लोग ओल्ड स्कूल बास्केट की प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं. एंड yeah, thank you so much for being here. Next episode goes live on Saturday. Stay tuned, stay connected. Thank you so much again. Thank you, Nitin Bhaiya, for doing this. Thank you so much, everybody. Good night.